Hello and namaskar. Welcome to your most loved talk show, India Bounce Back, with me, your host, Dr. Anshul Dhingra. And today, I'm really privileged and happy that I have a wonderful and very esteemed guest. And today, to all my viewers, I can promise you, I can commit you that you will get a different perspective of life today. So watch till the end and be ready for some amazing discoveries with the eminent personality which I have. Before taking much time, I would like to introduce Dr. Akashdeep Arora. Dr. Akashdeep Arora, a complete blind Rajasthan administrative officer, presently posted as Deputy Director at Indira Gandhi Panchayati Raj and Gramin Vikas Sansthan, Jaipur. He is a MA Gold Medalist in Psychology from Rajasthan University and also a Master of Science degree in Counseling and Psychotherapy from Indian Institute of Psychotherapy and Management Sciences, Mumbai, and later did his PhD with JRF. He started his professional journey by giving coaching to students who opted for psychology as a subject for their NET, IAS, and RAS competitive examinations. As a counselor, he was invited to various schools and colleges for providing psychological and life skills trainings. His consistent efforts and determination got him 12th rank in general merit in RAS all over Rajasthan in 2011. And since then, he's serving like a true, dedicated, honest, and hardworking administrative officer in the country. Today, he is a role model and voice for many across India who are going through similar challenges. And he is someone who constantly raises his concern on the issue of complete inclusion for disabled in the society. Ladies and gentlemen, I'm again saying today, I am really very sure that you are going to get a completely different perspective of life. So stay tuned and help me welcome Dr. Akashdeep Arora. Akashdeep sir, thank you so much with both folded hands. मेरे हाथ जुड़े हुए हैं और मैं आपको बहुत बहुत शत नमन करता हूं. आज आपने वक्त निकाला और I know एक RAS का schedule life का कैसे रहता है. You're very occupied in all different activities, but आज आपने वक्त निकाला. मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं और मैं अपने viewers की तरफ से आपका दोनों हाथ जोड़ के welcome करता हूं. Thanks a lot. Thanks. Thank you. So, sir, I think this is something very uncommon, but yes, today you are going to, and I'm very sure the way I've discussed with you, I'm very sure today you will open up your heart. आज आप हमसे अपने दिल की बात करेंगे, दिल खोल के बात करेंगे और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर शायद सरकार उतना सीरियसली रोल नहीं प्ले कर रही, बहुत लोग सीरियसली रोल नहीं प्ले करते, लेकिन आज हम मिलकर उस मुद्दों को उठाएंगे और मैं चाहूंगा कि आप उन मुद्दों पर खुलकर बात करें और हमारे व्यूअर्स के लिए एक जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण दें और हम सब मिलकर कैसे इस इंक्लूजन के मुद्दे के ऊपर हम बहुत बड़ा एक काम कर सकते हैं मिलकर. आज हम उस पर चर्चा जरूर करना चाहेंगे. सो एक सिंपल सा सवाल, मेरा सबसे पहला सवाल आपको यह है, जो मैंने अभी पढ़ा वो आपका एक प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन है. आपने जीवन में बहुत सारा अच्छा पढ़ाई किया, आगे बढ़े, आपका रैंक था एंड यू गॉट इट ऑन अ मेरिट एज अ मेरिट होल्डर. ये सब जो मैंने पढ़ा, ये सब एक आपका प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन है जो शायद लोग इजीली पढ़ सकते हैं. मैं जानना चाहता हूं डॉक्टर आकाशदीप अरोड़ा से कि वो अपनी जबान से मुझे समझाएं कि उनकी जीवन की ये जर्नी कैसी रही, जिसमें जर्नी में लर्निंग थी, एक्सपीरियंस था, चैलेंजेस थे, लीडरशिप थी, स्टैंड पॉइंट्स थे, इनिशिएटिव्स थे और शायद बहुत सारी हिम्मत थी. तो मैं आपके जबान से समझना चाहूंगा डॉक्टर आकाशदीप अरोड़ा की बचपन से लेकर अब तक की जिंदगी. सबसे पहले तो आपको और आपके व्यूअर्स को बहुत सारा पॉजिटिव रिगार्ड एंड एक जो आपने क्वेश्चन पूछा है तो बहुत सारी मेमोरीज ताज़ा हो गई हैं लाइफ की. मेरे को बताया गया कि मेरी मदर जब मेरे 3.5 साल की उम्र में मेरी जो ब्लाइंडनेस है इसका डायग्नोसिस हुआ, तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने जब ये न्यूज़ ब्रेक करी मेरी मदर को, तो मेरी मदर बताया करती थी कि यह अक्सर कि उन्होंने जो कोई भी एजुकेटेड पेरेंट का क्वेश्चन होगा, उन्होंने डॉक्टर से क्वेश्चन पूछा कि इसका स्कूल जाने का किस तरह से रहेगा.
तो डॉक्टर का कहना था कि मैडम आप इसकी पढ़ाई वढ़ाई तो भूल जाइए। तो मदर का कहना था कि रोती हुई हॉस्पिटल से निकली थी उस टाइम पे। तो दो तरह के बैरियर होते हैं सोसाइटी में, इंफॉर्मेशन बैरियर और एटीट्यूडनल बैरियर, यानी जानकारी का अभाव और नकारात्मक एटीट्यूड। ये दो बिल्कुल तरह के बैरियर एक डिसेबल पर्सन की लाइफ में आते हैं जो उनकी ग्रोथ को रोकते हैं। फिजिकल बैरियर यानी फिजिकल बैरियर्स तो होते ही हैं, बट इन ये दो बैरियर और भी साथ में जुड़ जाते हैं। तो बेसिकली जैसे ही डायग्नोसिस हुआ ये इंफॉर्मेशन एटीट्यूडनल बैरियर जुड़ गए। अब उस डॉक्टर से आज जाके मैं मिलूं और कहूं कि आपकी तो प्रिडिक्शन बिल्कुल गलत हो गई, कि आपने तो कहा था पढ़ाई वढ़ाई भूल जाइए और आपने अभी उससे पहले आपने बाकी चीजें रीड आउट कर दी, तो मुझे कुछ कहने की जरूरत है नहीं कि प्रिडिक्शन बिल्कुल कितना गलत बिल्कुल हुआ उनका। बिल्कुल फिर जब मेरी घर पे पढ़ाना शुरू किया पेरेंट्स ने, अब मैं सिंगल चाइल्ड, अकेले अगर बच्चा घर पे होगा और मैं थोड़ा, आप उस टाइम पे तो नटखट कहा जाता था, अब आप शायद एनर्जेटिक कह लो, जब सक्सेस मिल जाती है तो वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल तो मदर के ऊपर कितना लोड होगा समझ सकते हो। तो फिर किसी ने सजेस्ट किया, वेल विशर ने, कि आप इसको स्कूल में डाल दो, घर के पास एक छोटा सा स्कूल है, बच्चा स्कूल जाएगा तो पढ़ के आने वाली बात तो किसी ने सजेस्ट नहीं सोची थी, कि उन्होंने ये कहा कि खेल के आएगा बट आपका तो टाइम बचेगा। बिल्कुल तो बट ये सजेशन दिया, तो अल्टीमेटली मम्मी ने परेशान होकर स्कूल में बात करी और मेरे को वहां पे स्कूल में डाल दिया। वैसे ये भी एक बैरियर है कि सोच का कि बच्चा स्कूल जाएगा तो, ब्लाइंड बच्चा स्कूल जाएगा तो खेल के आएगा, बिल्कुल पढ़ तो ठीक सक बात है। नहीं पाएगा। बट चलो कोई बात नहीं, मतलब फिर भी एक तरह से बहुत नेगेटिव सोच नहीं थी, कि मतलब चलो स्कूल जाने की बात तो हुई, मम्मी ने स्कूल डाला। अब कुछ लोगों का फिर व्यू आया कि इसको तो स्कूल स्कूल क्यों डाल रहे हो, स्कूल जाके क्या करेगा ब्लाइंड बच्चा, आप तो इसको म्यूजिक सिखाओ, कुछ कमा खा लेगा। नहीं, ब्लाइंड पर्सन कैसे कमा खा सकता है ट्रू भाई, ट्रू है ना। बिल्कुल तो यही सोच है। म्यूजिक, है हम्म ना। हम्म, एक आप सोसाइटी में ये भी व्यू पॉइंट है कि ब्लाइंड पर्सन में तो म्यूजिक की जो ऐप है वो प्री इंस्टॉल्ड आती है, बिल्कुल है। राइट, कि हर पर ब्लाइंड पर्सन में म्यूजिक का तो क्षमता होगी ही होगी। बट ये डिसाइड हुआ म्यूजिक भी सीखेगा और पढ़ा स्कूल भी जाएगा, चलो दोनों काम हो गए। बट अब मेरे में तो प्री इंस्टॉल्ड म्यूजिक की ऐप थी नहीं भाई। मेरे को 3 साल म्यूजिक सीखा, सुर लयताल समझ आया नहीं, बट थर्ड क्लास में फर्स्ट रैंक आना जरूर शुरू हो गया, कुछ टीचर्स का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा। तो मतलब, और थर्ड क्लास से म्यूजिक से मेरे को जो एग्जाम में म्यूजिक छूटा था आज तक छूटा हुआ है। म्यूजिक को मुझसे मुक्ति मिली और मुझे म्यूजिक से। और क्या पढ़ाई बात का दौर चला, अच्छा चलता रहा, फर्स्ट रैंक आता रहा। फिर 10th जब एग्जाम देने की बात हुई, तो फिर लोगों का कुछ व्यू पॉइंट आया कि चलो हाँ 10th करा दो, सेकंड थर्ड डिवीजन में चलो 10th तो कर लेगा, बोर्ड में तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी मेरे से, बट फिर कोई शॉप खुलवा देना, कुछ करवा देना, कुछ कमा खा लेगा। तो बट उनकी ये प्रेडिक्शन भी गलत हो गई, क्योंकि 10th में मेरे 83% बोर्ड में थे और 12th में मेरा राजस्थान बोर्ड में मेरिट में 29th रैंक था। क्या बात है क्या बात है। बट अब ये जो बैरियर्स होते हैं सोच जो इंफॉर्मेशन की कमी और ऑल दिस, सोसाइटी में तो होते ही हैं, और क्योंकि जानकारियां नहीं होती तो हम में भी होते हैं। तो बिल्कुल है। क्योंकि वो एक बेचारा वर्ड ना बार बार इस्तेमाल करके वो इंसान को शायद कमजोर बना दिया जाता है। बिल्कुल, तो क्या हुआ कि हमें भी उस टाइम पे अवेयरनेस की कमी थी, तो ब्रेल भी यूज नहीं करी मैंने, रिकॉर्डिंग भी यूज नहीं करी, टोटली मम्मी की रीडिंग पे डिपेंडेंट था मैं 12th तक। और आल्दो मेरा इतना अच्छा रैंक आया, बट मम्मी की वोकल कोड में स्वेलिंग आ गई थी रीडिंग कर करके, जो मतलब ये था कि कई दिनों तक मम्मी की 15 दिन तक तो आवाज नॉर्मल नहीं हुई मेरे एग्जाम के बाद। बट कुछ संभावनाएं लाइफ अपॉर्चुनिटीज देती है सबको। एक मैरिज में हम गए, वहां पे एक पर्सन ने नोटिस किया कि मैं ब्लाइंड हूँ। उन्होंने पूछा पेरेंट्स से आपका बच्चा ब्लाइंड है, पेरेंट्स ने कहा हाँ।
उन्होंने कहा इसको ब्रेल आती है? मम्मी पापा ने कहा नहीं। तो उन्होंने एक कांटेक्ट नंबर दिया अपने ब्रदर का और कहा कि ये मेरे ब्रदर है, गवर्नमेंट टीचर हैं, टोटली ब्लाइंड है, आप इनसे जाके मिलिए, ये आपको गाइडेंस भी देंगे और बच्चे को ब्रेल भी सिखा सकते हैं ये। हम जाके उनसे मिले, जितेंद्र नाथ भार्गव करके मतलब सर हैं मतलब, तो उनसे, तो वहां पे उन्होंने, सर ने मेरे को से एक क्वेश्चन पूछा कि कभी न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स रेगुलर पढ़ पाते हो कुछ, मतलब नॉवेल्स? मैंने कहा नहीं, टेक्स्ट बुक्स के अलावा तो कुछ पढ़ने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, क्योंकि मम्मी के पास टाइम ही नहीं मिल पाता इसके अलावा। तो बिल्कुल। उन्होंने कहा अगर तुम टेक्स्ट बुक्स को रीडिंग करा रिकॉर्ड करा लो और ब्रेल में ब्रेल टाइपराइटर या ब्रेलर जिसे कहते हैं उसकी ले लो और उसकी हेल्प से नोट्स बना लो, तो मम्मी का जो बचा हुआ टाइम होगा उसमें तुम न्यूज़पेपर मैगजीन ये सब पढ़ पाओगे उनकी हेल्प से। बिल्कुल। बात लग गई। हम्म। और मेरे को विश्वास है, अब समझ आया कि जब इंसान पे परिवर्तन तब आता है जब बात यहाँ लगती है, बिल्कुल। दिल में। वरना तो 17 चैनल पे 18 बाबा परिवर्तन प्रवचन रोज देते हैं, तो बिल्कुल। है ना। तो बिल्कुल। उस दिन मैंने ब्रेल सीखी, उसका डिसीजन किया, मैंने ब्रेल सीखी, और फिर मैं टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग करा लेता टेक्स्ट बुक्स और नोट्स की, और फिर मैं ब्रेल के थ्रू, तो जो फ्रीडम मिला मेरे को कि हम्म। मैं जब पढ़ रहा हूँ, जब नहीं पढ़ना चाह रहा नहीं पढ़ रहा। तो उस अभी दिन तक। फ्रीडम का मतलब समझ आया मेरे को। हम्म। अब एक ब्रेल का यूज करना शुरू किया, और अब फिर मैंने डिसाइड किया कि जहां जहां मेरे को सेल्फ रिलायंस मिलेगी लाइफ में, वो मैं चीजें, तब से कम्युनिटी से जुड़ना भी मेरा शुरुआत हुई उससे। बहुत अच्छा। अब एक बहुत बड़ा चेंज आया कि हर पर्सन में कोई ना कोई एप्टीट्यूड होता है, म्यूजिक का तो नहीं था, बट हर पर्सन की कोई ना कोई नियति होती है, पर्सनल लेजेंड या डेस्टिनी होती है। मेरे को पता चल, इंटरेस्ट था लोगों के पर्सनल इमोशंस, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, ह्यूमन नेचर को समझने में एक बिल्कुल। जिज्ञासा थी। हम्म। और मेरे को लगा कि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरी इस नीड को पूरा कर सकता है। हम्म। मैंने ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी लेने की इच्छा व्यक्त करी, बड़ा रेजिस्टेंस मिला घर से बाहर से कि ब्लाइंड पर्सन तो साइकोलॉजी पढ़ ही नहीं सकता। बट हम्म। मेरे को कुछ लोगों ने ये बताया कि फॉरेन में तो ब्लाइंड साइकोलॉजिस्ट भी हैं, हम्म। और साइकोलॉजी सब्जेक्ट में ऐसे प्रैक्टिकल नहीं होते कि जो ब्लाइंड पर्सन ना कर सके। तो मैंने वहाँ पे यूनिवर्सिटी में सब जगह ये समझाया, कॉलेज में, कि मतलब आप राइटर तो देते ही हो, तो वो राइटर मेरे को प्रैक्टिकल करने में भी हेल्प कर देगा, मतलब आप मेरे को मौका तो दो सब्जेक्ट लेने का एक बार। बिल्कुल। बिल्कुल। तो बड़ी मुश्किल से परस्यू करके सब्जेक्ट लिया, हम्म। और एमए में मैं 2001 में राजस्थान यूनिवर्सिटी से किया, और जैसे कि आपने बताया कि आई वाज एमए गोल्ड मेडलिस्ट। हम्म। तो वंस वन ऑफ माय प्रोफेसर वाज सेइंग टू माय मदर कि हमने सोचा था कर तो लेगा, हम्म। बट इतने अच्छे से करेगा ये नहीं सोचा था। हम्म। मैंने कहा यही तो प्रॉब्लम है। तो ट्रू। अल्टीमेटली, तो कुल मिला के मजा आया साइकोलॉजी पढ़ के। बहुत तो अच्छी बात है। तो ये चीज थी। तो अब अगला ट्रांसफॉर्मेशन मेरी लाइफ में जो वो आया जब मेरी लाइफ में कंप्यूटर आए, मैं किताबों को कंप्यूटर में स्कैन करके पढ़ने लग गया, हम्म। वेल प्रिंटेड इंग्लिश बुक्स को। और वो टॉकिंग सॉफ्टवेयर मेरे को पूरा उसके थ्रू मैं सेंटेंस बाय सेंटेंस, वर्ड बाय वर्ड पढ़ लेता, पूरा उसको डिक्शनरी मीनिंग भी देख लेता। तो किताबें पढ़नी मेरी एक्सेसिबल हो गई टोटली। और विंडो एनवायरनमेंट क्योंकि पूरा उससे एक्सेसिबल हो गया, तो मैं अपना पीएचडी थीसिस भी वर्ड में मैंने खुद टाइप करी, इंटरनेट पे न्यूज़पेपर पढ़ने लग गया, सब काम, मतलब काफी एक्सेसिबिलिटी मिल गई कंप्यूटर लाइफ में जब आए। वेरी गुड। तीसरा ब्रेक थ्रू तब आया जब स्मार्टफोन्स लाइफ में आए विद टॉकिंग सॉफ्टवेयर। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होती जा रही है मेरी लाइफ में, ट्रिमेंडस एक्सेसिबिलिटी आती जा रही है। आज मैं अपना मोबाइल फोन के थ्रू अपना पेटीएम भी यूज करता हूँ, गूगल पे भी यूज करता हूँ, आज मैं फूड ऑर्डर भी करता हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग भी करता हूँ, आज मैं फोटो खींच के डॉक्यूमेंट को भी पढ़ता हूँ, मतलब ओसीआर की हेल्प से। मतलब खैर बात लंबी हो जाएगी, बट मोबाइल फोन ने लाइफ नोट भी पहचान पाते हैं इससे, ऐप की हेल्प से। मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे मतलब एक्सेसिबिलिटी बहुत बढ़ रही है, मतलब तो दे आर ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइफ। अब
क्योंकि मैंने पीएचडी करी जेआरएफ के साथ ऑल दिस, तो कोई भी इतनी एकेडमिक अचीवमेंट लेता है तो उसका टीचिंग में इंटरेस्ट तो होता ही है। तो बिल्कुल। मेरा गोल था कि मैं साइकोलॉजी में लेक्चरशिप में जाऊं और कुछ साइकोलॉजी में हाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करूं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में राजस्थान कॉलेज, राजस्थान यूनिवर्सिटी में वैकेंसी निकले नहीं। मैं फैमिली से दूर बिकॉज ऑफ माय कंडीशन जा नहीं सकता था जयपुर से बाहर। तो मैं सोचा प्राइवेट कॉलेजेस में ट्राई करते हैं, मतलब जॉब के लिए। एक प्राइवेट कॉलेज में मैं इंटरव्यू देने गया। उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा, आप तो ये बता बोर्ड पे कैसे लिखोगे। मैंने कहा पहली बात तो साइकोलॉजी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, तो ज्यादा मोस्ट ऑफ द थिंग्स कन्वर्सेशन के थ्रू पढ़ाई समझाई जा सकती है स्टूडेंट्स को। दूसरी बात, अगर कुछ ऑडियो विजुअल समझाना है बच्चों को तो मैं टेक्नो फ्रेंडली हूँ। मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना के लाऊंगा और एलसीडी पे पढ़ाऊंगा। मेरे को बोर्ड की क्या जरूरत है, बोर्ड इज आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। ट्रू। हायर एजुकेशन में बोर्ड की क्या जरूरत है। तो बट उन्होंने एक ही क्वेश्चन पूछा और 2 मिनट में मेरे को बाहर कर दिया। रिजल्ट आप समझ गए होंगे। बिल्कुल। तो अब नेक्स्ट थिंग, एक और कॉलेज में इंटरव्यू देने गया, प्राइवेट कॉलेज में। उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स देख के बड़ी तारीफ करी मेरी। मैं कहा अच्छे लोग लग रहे हैं। बट फिर उन्होंने मेरे सब्जेक्ट की नॉलेज टेस्ट नहीं करी, थैंक यू कह दिया। मैं कहा आदमी भी दाल में तो काला है। फिर मैंने इंटरव्यू बोर्ड में मैडम बैठी थी, उनसे पूछा, मेरे को लगता है आप लोग बायस्ड हैं और आप लोग मुझे लेना नहीं चाह रहे, तभी आपने मेरी नॉलेज तो टेस्ट करी ही नहीं। मैम बोली, अरे देखिए देखिए आपने आपकी कितनी तारीफ करी, आप ऐसे कैसे कह रहे हैं हम बायस्ड हैं। मैं कहा मैम मैं तारीफ इंटरव्यू देने नहीं है, मैं जॉब इंटरव्यू देने आया हूँ। और तारीफ से पेट भर जाता तो कोई जॉब क्यों करता। सही बात है। तो फिर सर, फिर मैंने कहा आज तो आर्ग्यूमेंट कर ही लो, लेने वाले तो है नहीं, फिर बहस करने से क्या डरना। सही बात। मैंने कहा मैम अगर मेरी जगह किसी और को लेंगे तो क्या आप परमानेंट लेंगे या परफॉर्मेंस बेस्ड रखेंगे उसको। उन्होंने कहा नहीं, हम क्यों परमानेंट क्यों रखेंगे, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो क्यों रखेंगे। मैं कहा तो मैं कब कह रहा हूँ मेरे को परमानेंट रखो, परफॉर्मेंस नहीं हो तो निकाल लेना। मैं कौन सा करो, आप पहले से क्यों बायस हो रहे हो। फिर वो कहते हैं नहीं डायरेक्ट स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन के तो तुम फिट नहीं हो। मैंने कहा लोगों बच्चों को डिसिप्लिन कैसे करोगे। मैंने कहा बच्चों को डिसिप्लिन को डंडे के बस पे किया जाता है क्या। मैंने कहा आप किसी डंडे के बल पे किसी को बिठा भी लोगे तो उनका मन तो बाहर घूमेगा, फिजिकली बिठा भी लोगे तो क्या होगा। बच्चे डिसिप्लिन किससे होते हैं, लेक्चर की क्वालिटी से। ट्रू। अगर कंटेंट अच्छा होगा तब तो बैठेंगे, कंटेंट अच्छा भी नहीं होगा तो फिजिकली आप बिठा भी लोगे तो क्या कर लोगे, मतलब उनको, मतलब अल्टीमेटली वो फीडबैक तो यही आएगा कि द क्वालिटी इज नॉट गुड। बिल्कुल। तो अभी भी अपन के मतलब यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब तो ये अल्टीमेटली अपना कंटेंट अच्छा होगा तभी ऑडियंस देखेगी। If I बिल्कुल ठीक है। present the way what I am presenting, if it is adding some value to the listeners, so that is our objective ना। ट्रू। ट्रू। अगर तो वो वैल्यू है ना, तो ये चीज है। तो फिर बट एट द एंड कोई रिजल्ट नहीं निकला वहां पे, मेरे को पता था। देन आई फेल्ट वेरी डिप्रेस्ड। मैंने डिसाइड किया कि मैं अब किसी जॉब इंटरव्यू में नहीं जाऊंगा प्राइवेट कॉलेज में, कोई फायदा नहीं है। आरएएस की वैकेंसी निकली थी एंड मैंने डिसाइड किया कि आरएएस का एग्जाम दूंगा। तो एक अटेम्प्ट मैंने किया जिसमें मेरा 2010 में कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के रूप में सिलेक्शन हुआ। 2008 में जो मैंने एग्जाम दिया था, 7 में जो एग्जाम दिया था उसमें तो 10 में रिजल्ट आया था, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर के रूप में मेरा सिलेक्शन हुआ था। 8 में एग्जाम दिया, उसमें मेरा 2011 में रिजल्ट आया, जिसमें जैसे आपने शेयर किया कि मेरा जनरल मेरिट में 12th रैंक रहा और मैं राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में मेरा प्रॉपर में मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं मतलब 40 सीट्स थी तो आई गॉट 1। तो डेस्टिनी अब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ले आई, जहाँ पे मैं अपने एकेडमिक नीड्स भी टाइम टू टाइम पूरी कर लेता हूँ बाय गिविंग माय लेक्चर्स एंड ऑल दिस, और एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब तो है ही। बहुत सो बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। दिस वाज द जर्नी। आई थिंक आई वॉज टू एनग्रॉस्ड, मैं पूरा का पूरा खो गया था। और आप जब जब बोल रहे थे ना, एक नॉर्मल जर्नी नहीं लग रही थी, और वो सब चीजें आंखों के आगे मैं शायद मैं देख नहीं पाया वो सब, लेकिन आज मैं आपकी बातों के सामने मैं बैठकर वो विजुअलाइज कर पा रहा था
कि वो कैसा माहौल रहा होगा। वो मैं, क्योंकि वो बेचारा, और वो वर्ड्स जब हर बंदा एक आपको एक नेगेटिव वजह से देखता है, और आई वुड लाइक टू सैल्यूट योर मदर फॉर ऑल द हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। आई थिंक जितना आपने अपनी जर्नी बताई, उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आई बिलीव उनका रहा है आपके जर्नी के अंदर। थैंक्स। Right. Yeah. So salute to the great lady. I think she has done a lot of hard work with you. और इतनी patience, मैं viewers आज जो देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, मैं ये सबको कहना चाहूंगा। I think ये एक ऐसी चीज है जो शायद as parents, आज mothers हैं, father हैं, आज हम लोग अपनी लाइफ में इतने engrossed हैं कि हम शायद अपने बच्चे को, हमारा बच्चा शायद देख पा रहा है, हमारा बच्चा शायद बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन फिर भी अगर एक माँ और एक बाप अगर उनको सही वक्त देते हैं, तो एक बच्चे के अंदर से आप इनॉर्मस पोटेंशियल निकाल सकते हैं। उनका जीता जागता एक उदाहरण है डॉक्टर आकाशदीप। आई थिंक थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग सच अ डिटेल्ड जर्नी। सेकंड मेरा क्वेश्चन है, आई वांट टू, मैंने आपका पहले भी एक दो बारी जब हमारी बातचीत हुई तो मैंने समझना चाहा, आपके लिए आज मेरे व्यूअर्स को आप बताएं, आपके लिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड डिसेबिलिटी। बिकॉज क्यों पूछना चाह रहा हूं आपसे, उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि आपने ना इस वर्ड को बचपन से लेके अब तक बार बार चैलेंज किया है। व्हाट इज द वर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिसेबिलिटी फॉर यू? देखिए, डिसेबिलिटी वर्ड जो है, ये वर्ड मतलब पहले तो मैं भी उसी रूप में समझता था जिस रूप में एक सामान्य व्यक्ति समझता है, मेडिकल मॉडल के रूप में, कि किसी शरीर के अंग का वीक होना या कम फंक्शन करना, विकलांगता। डिसेबिलिटी को अगर हिंदी में कहें विकलांगता, विकलांगता। अब उसको वर्ड दिव्यांगता दे दिया गया है, राइट? यस यस और इसको टेक्निकली कानून में भी दिव्यांग वर्ड कर दिया गया है। यस। बट हमारी कम्युनिटी में एक चीज मैं शेयर कर देता हूँ कि बहुत से लोग दिव्यांग शब्द को लेके एक, मैं ये नहीं कहूंगा कि हम उसे कहें, बट कुछ लोग इस वर्ड को लेके सहमत नहीं है। दे डोंट लाइक दिस वर्ड। क्यों? क्योंकि पहली बात तो दिव्यांग शब्द एक ये क्रिएट करता है कि इनके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर या दिव्यांग है, यानी हमारी जो स्पेशल नीड्स हैं उसको ये स्पेशल पावर, उसको हाइड कर देता है। एक तो ये बात आ गई कि स्पेशल नीड्स है ही नहीं, फिर तो अगर दिव्यांग है यानी स्पेशल पावर्स है, यानी जो स्पेशल नीड्स है, मतलब कोई स्पेशल जरूरत तो है ना, तभी तो व्यक्ति डिसेबल है। बिल्कुल। उस नीड को तो हाइड ही कर दिया, है ना। दूसरी बात, लोगों का एटीट्यूड तो वही का वही है। वर्ड दिव्यांग कर दिया तो हिपोक्रेसी आ जाती है कि वो हमें जो स्पेशल नीड्स है उसको तो कैटर नहीं किया जा रहा, जो बैरियर्स है उनको तो दूर नहीं कर रहे। दिव्यांग कह रहे हैं, यानी वो तो अंदर तो ये भाव है, देखो हम कितने महान है कि आपको, आप जैसे गए बीते लोगों को भी हम दिव्यांग कहते हैं। तो हिपोक्रेसी आ जाती है, मतलब क्योंकि सेंसिटिविटी तो आई नहीं, फिर आप दिव्यांग वर्ड यूज कर रहे हो, तो ये तो वर्ड आ गया सिर्फ। तो एक तो ये बात रही। दूसरी बात अब मैं कह रहा हूँ कि मेडिकल मॉडल जो था उसमें तो कहा जाता था कि मतलब डिसेबिलिटी है किसी अंग में कमजोरी होना, जैसे व्यक्ति। बट अब 2006 में एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन हुई थी जिसे इंडिया ने भी साइन किया था, इसलिए 2016 का कानून बनाना पड़ा इंडिया को, नया कानून डिसेबिलिटी एक्ट, जो इंडिया को, क्योंकि उस मतलब कन्वेंशन को रेटिफाई करने के लिए, उस कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो उस कन्वेंशन में एक सोशल मॉडल को अपनाया गया। इस मॉडल में डिसेबिलिटी को जो डेफिनेशन है थोड़ी सी टेक्निकल लगेगी, बट मैं बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दूंगा 1 मिनट में आप लोगों के लिए, तो थोड़ी सी पेशेंस के साथ इसको सुनिएगा। पहले इंग्लिश में बोलूंगा, फिर हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा आपके लिए, और फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं 3 स्टेप में आपको बताऊंगा। जरूर जरूर। डिसेबिलिटी इज फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी impairment which in the interaction with various barriers restricts individuals full and effective participation with society on equal basis। मोटी मोटी ये डेफिनेशन है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, यानी विकलांगता
या दिव्यांगता व्यक्ति का विकलांगता या दिव्यांगता शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदनात्मक क्षति है जो विभिन्न बाधकों के साथ अंतःक्रिया करती है, तो उससे व्यक्ति के समाज में दूसरे व्यक्तियों के साथ समान रूप से भागीदारी करने की क्षमता में कमी आ जाती है। चलिए, भारी भरकम लगी होगी, बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देता हूँ इस बात को आप लोगों के लिए। हाँ जी। यानी देखिए, डिसेबिलिटी क्या है? व्यक्ति की इम्पेयरमेंट, जो क्षति है, वो डिसेबिलिटी नहीं है। डिसेबिलिटी है व्यक्ति की समाज में समान रूप से भागीदारी ना कर पाना, समान रूप से भागीदारी या एक्टिविटी ना कर पाना लोगों के साथ, वो डिसेबिलिटी है। वो आ कहाँ से रही है? यानी पर्सन की जैसे इम्पेयरमेंट है, क्षति है, जो शारीरिक क्षति है, जैसे चल फिर नहीं पा रहा, व्हील चेयर पे पर्सन है, देख नहीं पा रहा, जो भी क्षति है उसका, जब मानसिक क्षति है, जो भी क्षतियां हैं, इम्पेयरमेंट है, उनका जब इंटरेक्शन होता है या मिलन होता है वातावरणीय बाधाओं के साथ, विभिन्न बाधाओं के साथ, बैरियर्स के साथ इंटरेक्शन होता है, उससे ये कमी आती है। एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, एक बिल्डिंग है जिसमें रैंप नहीं है। एक व्हीलचेयर पर्सन उस बिल्डिंग में एंटर होने की ट्राई करता है। अब एंटर नहीं हो पाएगा, बिल्कुल। यानी उसकी वहां पे समान भागीदारी करने की क्षमता में कमी आ गई, डिसेबिलिटी आ गई। यानी सिंपल शब्दों में कि डिसेबिलिटी क्या है? समान भागीदारी ना कर पाना। अब डिसेबिलिटी आ गई। अब इस डिसेबिलिटी का कारण क्या है? पहला फैक्टर उसका शारीरिक क्षति, इम्पेयरमेंट, उसकी कमजोर टांगे। बिल्कुल। दूसरा फैक्टर क्या है? वो बिल्डिंग जिसमें रैंप नहीं है। यानी वातावरणीय बाधा, फिजिकल बैरियर। अब ये दोनों का मिलन हुआ, तब वो समान भागीदारी नहीं कर पा रहा। इन दोनों में से एक भी फैक्टर हटा दें, यानी उसकी टांगों में इम्पेयरमेंट नहीं है या उस बिल्डिंग में रैंप है, दोनों में से एक भी हटा दें तो वो बिल्डिंग में एंटर हो पाएगा ना आराम से, सामान्य व्यक्ति की तरह? बिल्कुल। तो डिसेबिलिटी कहाँ रही? नहीं रही ना। नहीं। तो यानी अब इस डेफिनेशन को उस लाइट में समझे कि यानी डिसेबिलिटी क्या है? समान भागीदारी की क्षमता में, समान भागीदारी ना कर पाना। और वो समान भागीदारी में जो बाधा आ रही है, वो आ रही है वातावरणीय बाधाओं के कारण और शारीरिक क्षति या संवेदनात्मक क्षति जो है, उसका का मिलन जब हो रहा है वातावरणीय बाधा के साथ। आई होप मैं क्लियर कर पाया? बिल्कुल बिल्कुल, है ना? बहुत सही एग्जाम्पल के साथ आपने क्लियर किया। उसी तरह मैं कहूँ कि मतलब एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है, उसको अगर मटेरियल, आप प्रिंटेड मटेरियल देते हैं, वो नहीं पढ़ पाएगा। तो और उसी को आप ऐसा मटेरियल देते हैं ब्रेल में या ऐसे एक्सेसिबल फॉर्मेट में कि वो मतलब टॉकिंग सॉफ्टवेयर पढ़ पा रहा है या किसी भी रूप में, तो पढ़ पाएगा। वातावरणीय बाधा नहीं रही तो समान भागीदारी हो गई। बिल्कुल है। तो अब ये बैरियर तीन तरह के होते हैं। फिजिकल बैरियर हो गया, एक तो जैसे रैंप का ना हो पाना या मटेरियल का सही फॉर्मेट में ना पाना। दूसरा बैरियर है इंफॉर्मेशन बैरियर, जानकारी ही नहीं है। मेरा एक फ्रेंड BSNL ऑफिस में गया कि मतलब 20% डिस्काउंट मिलता है डिसेबल व्यक्तियों को, उस टाइम पे मिला करता था, अभी का तो मेरे को नहीं पता, बट कि डिसेबल व्यक्तियों को 20% डिस्काउंट मिलता है इंटरनेट कनेक्शन पे, तो मुझे दो। तो वो कहता है नहीं, आप ब्लाइंड पर्सन के लिए तो नहीं है। उसने कहा कि क्यों नहीं है? ब्लाइंड पर्सन के लिए, सभी डिसेबल्स के लिए। वो कहता है अरे आप लोग भी अजीब बात करते हैं, ब्लाइंड पर्सन कंप्यूटर चला ही नहीं सकता, उसको क्यों मिलेगा? तो अब यानी उसने मान ही लिया कि ब्लाइंड पर्सन कंप्यूटर नहीं चला सकता, तो इंफॉर्मेशन बैरियर है। तो अब जैसे आपके अगर आपको नहीं पता होता कि मैं जूम पे मीटिंग कर सकता हूँ आपके साथ, बिल्कुल, तो आप मेरा इंटरव्यू जूम पे लेने की ट्राई भी नहीं करते शायद। नहीं कर पाते। ये है ना? बिल्कुल तो वातावरणिक बैरियर हो जाता।
हाँ, तो इंफॉर्मेशन बैरियर है ना, तो ट्रू वो ट्रू आप मेरे ट्रू, में उतनी इंफॉर्मेशन संभावना बैरियर। देखते ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो अभी अपन जूम पे मीटिंग भी नहीं कर रहे होते, नहीं कर रहे होते, आप सही मेरे को बात लिंक है। ही नहीं भेजते जूम पे, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये बात है। तो ये बात रही। तीसरा, एटीट्यूडनल बैरियर, हम्म कि बहुत सारी तरह तरह की नकारात्मक मनोवृत्तियां हैं, डिसेबल पर्सन्स को लेके भ्रांतियां हैं, तो फिर उसी नजरिए से देखते हैं लोग। हम्म जैसे मैंने बताया, म्यूजिक, ब्लाइंड पर्सन तो म्यूजिक तो करेगा ही करेगा। हम्म। अब बहुत सी क्षमताएं, डाइवर्स क्षमताएं ब्लाइंड पर्सन में हो सकती है, जैसे सामान्य व्यक्ति में, बट हम म्यूजिक तक ही रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। एक एग्जांपल दिया मैंने। तो बिल्कुल है। एटीट्यूडनल बैरियर्स भी होते हैं। तो ये तीन तरह के बैरियर हैं। ये इंफॉर्मेशन एटीट्यूडनल बैरियर दिखते नहीं है, बट वो भी होते हैं। तो बिल्कुल ये, है। अब आपने पूछा तो मैंने नहीं अब, नहीं, बहुत, आई थिंक हाँ, दिस इज अ रियली अ वंडरफुल इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द व्यूअर्स। आई थिंक मैं आखिरी वाले को अगर मैं अपनी भाषा में समझ पाऊं तो मैं ये बोलूंगा कि वो दृष्टिकोण की विकलांगता है। बिल्कुल, करेक्ट, इन एटीट्यूडनल बैरियर कहें या कुछ भी, वो जिसका दृष्टिकोण। और दूसरा, आपके आज एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं जितने भी मेरे व्यूअर्स जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट में है, मैं उनके लिए आज आकाशदीप की जी की तरफ से मैं एक मैसेज पास ऑन करना चाहता हूं कि आपके पास कभी जिंदगी में कोई ब्लाइंड पर्सन आए तो उसको कभी भी आप अंडर एस्टिमेट मत करना। और उसको अगर 20% रिबेट मिलनी है डिसेबिलिटी की, उसको देना। नहीं, बट रियली आई थिंक दिस इंफॉर्मेशन इज रियली वेरी वैल्यूएबल, बिकॉज आपका आपका मैं बहुत सारे कॉन्टेक्ट समझ पा रहा हूं और मैं बहुत एनग्रॉस्ड होके आपकी कन्वर्सेशन सुन रहा हूं, क्योंकि एक्चुअल में ये बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो शायद कभी बारीकी से सोची समझी नहीं गई, ना ही किसी को बताई गई। सब लोग एक बेसिक जो चीजें पता है उतनी ही इंफॉर्मेशन के ऊपर डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं। और शायद इसीलिए बहुत सारे लोग जो जो एक अपना संघर्ष लड़ रहे हैं, जैसे आपने अपना एक संघर्ष लड़ा, उनको शायद वो संघर्ष उनका और डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो सामने वाला है, जो रिसीवर एंड पे बैठा है, वो शायद उतनी अकल, उतनी समझदारी नहीं रखता, या उतनी संवेदना नहीं रखता, या उस तरीके की सोच नहीं रखता कि ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन के अंदर उस इंसान के साथ कैसे डील करना चाहिए। एम आई राइट आकाशदीप जी? बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब यही बात है मेनली, कि मतलब बिल्कुल। वास्ट पॉपुलेशन में हम किसी एक को टारगेट नहीं कर सकते। इट हम्म, इज द बैरियर्स आर, मतलब इन वास्ट कम्युनिटी में, मतलब स्प्रेड बिल्कुल है, मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मेरा एक अगला सवाल आपसे ये है, ये सारी बातें हमने समझी, बहुत सही है, आपने बहुत अच्छे से डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया। आई थिंक ये मेरे व्यूअर्स के लिए बहुत एक एक इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन है। मेरा आपसे ही पूछना है, आपका एक ना, मैं उसको जंग बोलूंगा या लड़ाई बोलूंगा, या एक एक आपकी अच्छी सोच है और एक मुहिम है आपके अंदर, जो शायद मैंने आपकी बातचीत में बार बार सुना। आपकी एक फाइट है एक वर्ड को लेके, इंक्लूजन इन द सोसाइटी। मैं चाहता हूं, और आप इस पे बहुत एग्रेसिवली, एक असर्टिवली अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हैं, मैं चाहता हूं आज मेरे व्यूअर्स के लिए अ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्या मतलब है इंक्लूजन इन द सोसाइटी फॉर यू, एंड व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट, एंड व्हाई यू रियली आर सो एग्रेसिव अबाउट इट? देखिए, इंक्लूजन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज, सभी मेन स्ट्रीमिंग इंक्लूजन, समाज में सभी लोग, सभी वर्ग के लोग, कोई अलग ना रहे, सभी लोग समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बने, ये एक प्रयास चल रहा है। वेरी ट्रू। तो सेम थिंग अप्लाइज ऑन जेंडर, सेम थिंग अप्लाइज ऑन, व्हाई नॉट ऑन डिसेबल पीपल, कि मतलब वो अलग थलग ना रहे, समाज की मुख्य धारा में जुड़े, समाज के सभी जो मतलब गवर्नमेंट या समाज के सभी जो एक्टिविटीज है उसमें वो पार्टिसिपेट करें, और समाज में जो चीजें हैं उनसे उनका पूरा बेनिफिट, जो बेनिफिट्स हैं सरकार के और समाज के, वो भी उनको मिले, उनको और मिले। वो कंट्रीब्यूट भी करें। मतलब दिस इज नॉट वन वे, टू वे,
करेक्ट। अब आप एक चीज बताइए कि मैं आज सिर्फ एक पेंशन भोगी बनूं या मतलब एक बेनिफिशियरी बन के रह जाऊं एक कॉर्नर में और अलग थलग रह जाऊं, वो बेटर है, या मैं कोई प्रोडक्टिव काम करूं और मैं टैक्स चुकाऊं और कंट्री के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करूं? करेक्ट, सेकंड वन इज आई थिंक उसके लिए चाइल्ड। ठीक है। दूसरी चीज कि मतलब ये चीज है, बट इसके लिए क्या हो जरूरी है? मेरा ओवरऑल डेवलपमेंट, गेटिंग मी ना? ट्रू। उसके लिए आप फर्स्ट, आप एक सामान्य बच्चा है, हम एज पेरेंट्स भी बात करें, हम पहले अपने बच्चे को पूरा के पूरा डेवलप करते हैं, फिर उससे एक्सपेक्ट करते हो ना कि आप हमें मतलब हम कंट्रीब्यूटरी वो बने फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, बट पहले हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं ना। ट्रू। तो वही चीज है कि हम पहले इनको एम्पावर करेंगे तभी वो कंट्रीब्यूट करेंगे। बिल्कुल। तो इंक्लूजन करना, देखिए अब इसमें इंक्लूजन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? शिक्षा है ना। यस। इंक्लूसिव एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। दो तरह की शिक्षा आ रही है, क्या विधाएं हैं? एक तो है कि स्पेशल एजुकेशन, कि इनको स्पेशल स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाए। एक तो ये भी था पहले कि विशेष स्कूलों में इनको विशेष सुविधाओं के साथ इनको अलग से, जैसे ब्लाइंड पर्सन के लिए ब्लाइंड स्कूल हो, मतलब जहाँ पे इनको अलग रखा जाए, डेफ एंड डम स्टूडेंट्स के लिए अलग स्कूल हो, मतलब विशेष स्कूल हो सबके लिए। बट आज की डेट में जो व्यू पॉइंट है कि इनको सामान्य स्कूलों में सामान्य बच्चों के साथ विशेष सुविधाएं देके मतलब पढ़ाया जाए। अब कौन सा पैटर्न बेटर है, इस पे कंट्रोवर्सी रही है, बट ट्रू। रियलिटी ये है कि अगर शुरू से आप इन लोगों को अलग कर दोगे, सेग्रीगेट कर दोगे, तो क्या होगा कि शुरू से अगर मेन स्ट्रीम लाइफ कहाँ बितानी है एक व्यक्ति को? मेन स्ट्रीम सोसाइटी में। अगर शुरू से इनको अलग कर दिया तो इनमें क्या फीलिंग आ जाएगी कि हम अलग हैं सोसाइटी से, मेन धारा का हिस्सा नहीं है। नई धारा का हिस्सा नहीं है। और जब एक ग्रुप अलग हो जाता है शुरू से, तो उसे मेन धारा के लिए अलग फीलिंग आती है और अपने लिए अलग फीलिंग आती है, इन ग्रुप आउट ग्रुप। और मेन यस। धारा के लोगों के बारे में मन में भी इनके लिए अलग फीलिंग आती है, राइट। ट्रू। और लाइफ, आज मेरा 99% कम्युनिकेशन किसके साथ है? मेरे को लाइफ तो अल्टीमेटली मेन धारा के लोगों के साथ ही बितानी है ना। ट्रू। तो फिर शुरू से अगर मैं उनके साथ नहीं जुड़ूंगा तो मैं कंफर्टेबल कैसे होऊंगा, वो मेरे साथ कंफर्टेबल कैसे होंगे, राइट। तो ये चीज है कि शुरू से अगर इनको सबको एक साथ एजुकेशन दी जाए तो मतलब ये है कि शुरू से ही अगर सेग्रीगेशन नहीं किया जाए, एक साथ पढ़ाया जाए। आज मेरे को अगर शुरू से सबके साथ रहा हूँ तो मैं आज बहुत कंफर्टेबल हूँ, क्योंकि मैं सेग्रीगेट नहीं किया गया। तो आज मैं आपके साथ फ्रीली बात कर रहा हूँ तो आपको लग नहीं रहा होगा कि मैं थोड़ा डिफरेंट है मेरे बिल्कुल। में कुछ, है बिल्कुल ना। है। बिल्कुल है। तो ये एक तो ये बात रही। दूसरी चीज ये है कि सामान्य व्यक्ति भी, ये अगर बच्चा बीच में उनके रहेगा और उनके तरह ही बिहेव करेगा, उनके साथ ही नॉर्मल कैपेसिटीज दिखाएंगे, तो उनको भी पता लगेगा कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है, इनकी वीकनेस क्या है, इनको किस तरह का सपोर्ट चाहिए, इनको कहाँ पे सपोर्ट चाहिए, कहाँ नहीं चाहिए। मतलब ट्रू। फॉर एग्जाम्पल एक लेडी का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, वो कहती है कि जहाँ मेरे को सपोर्ट चाहिए वहां तो नहीं मिलता, बट शी इज टोटली ब्लाइंड एंड शी सेज, मैं बस में खड़ी होती है तो बूढ़े लोग खड़े हो जाते हैं, अरे अरे सीट देने के लिए। शी सेड कि मेरे को वो थोड़ी चाहिए, मतलब मेरे टांगे बिल्कुल नॉर्मल, मैं खड़ी हो सकती हूँ बस में, तो दैट इज नॉट माई नीड ना। तो कहाँ सपोर्ट चाहिए और कहाँ नहीं चाहिए, ये तो एजुकेशन तभी होगी जब ये लोगों के साथ हमारे साथ आप लोग टाइम स्पेंड करोगे, हमारे बीच में बिताओगे। बिल्कुल है। बच तो बचपन से सेंसिटाइज है तो तभी होगा ना जब ग्रुप में साथ टाइम बिताएंगे। तो मेरा मानना है कि इंक्लूजन इज नॉट ए लग्जरी, इज ए नेसेसिटी। नेसेसिटी। और दूसरी चीज क्या है कि आप अगर इस इन पर्सन विद स्पेशल नीड्स या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स
के तरफ अगर हम अपने सामान्य बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, अगर उनको सेंसिटाइज नहीं कर पाएंगे तो वो फिर हमारे प्रति, एक चीज बताओ, हमारे बच्चे अगर इनके प्रति सेंसिटाइज नहीं होंगे तो हमारे प्रति कैसे सेंसिटाइज होंगे? हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे पेरेंट्स की लेटर एज में हमारे प्रति ओल्ड एज में सेंसिटाइज रहेंगे हम, वो अगर इन बच्चों के प्रति सेंसिटाइज नहीं होंगे तो? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। तो दे आर वेरियस इश्यूज ऑफ इंक्लूजन बट जो आपको इश्यूज। पर हाँ पर मैं यहाँ आपको ये पूछना चाहता हूँ, बिल्कुल सही है, ये जंग भी सही है, मैं आपकी सारी बातों से भी सहमत हूँ। आई थिंक एक बहुत बड़ा, मेरे हिसाब से जितना मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, अगर इस तरीके का इंक्लूजन यस होना, मतलब विदाउट एनी सेकंड थॉट इन द माइंड, दिस इज द नीड, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस मस्ट बी डन। बट इसके लिए बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से क्रांतिकारी कदम उठाना, पूरे समाज को समझाना, पूरे समाज की समझ में भी आना, क्योंकि आपके साथ ना शायद किसी सरकार ने कुछ गलत नहीं किया था। इनिशियली जो हर्डल्स थी ना, वो आपके अपने लोगों की वजह से ही थी, उनके माइंडसेट बैरियर्स की वजह से थी, क्योंकि उनकी सोच वैसी थी। आई थिंक पूरे समाज के अंदर ये एक बदलाव आना बड़ा जरूरी है, जितना मैं मानता हूं, क्योंकि सरकारें तब शायद कोई इनिशिएटिव ले पाएंगी जब कम से कम छोटे छोटे इनिशिएटिव लोग लेना शुरू करेंगे, लोग समझना शुरू करेंगे, और लोग उसको उस संवेदना से, उस गहराई से महसूस करने की कोशिश करेंगे, जिस गहराई से शायद वो इंसान जो ये चीज से गुजर रहा है वो महसूस कर रहा है, उसके इस दर्द को, उसके इस इस सिचुएशन को महसूस करने की बहुत बड़ी, एक मेरे हिसाब से आज जरूरत है। बिल्कुल। तो फ्रैंकली स्पीकिंग ये एक डेफिनेटली एस्पेक्ट है कि मतलब सिस्टम एंड सोसाइटी दोनों का रोल है इसमें। और जाहिर सी बात है कि मतलब चेंज एजेंट जो हैं उनको तो हु कॉल देमसेल्व्स एज चेंज एजेंट, मतलब उनको तो आगे आना ही चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल है। एक सवाल आपसे ये है, आपकी पूरी जर्नी सुनी, आपके बारे में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके संघर्ष, और अभी तक भी आप हर दिन जिंदा दिल तरीके से जिंदगी को जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आकाशदीप जी, मैं अपने व्यूअर्स के लिए आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आपको क्या चीज ड्राइव करती है लाइफ में? क्या चीज ऐसी है जो आपका ड्राइविंग फोर्स है, आपका मोटिवेशन है? देखिए, मोटिवेशन तो अल्टीमेटली यही है कि फ्रैंकली स्पीकिंग वो कई मोटिवेटिंग फोर्स हैं, जैसे अभी आपने शेयर किया कि जो लाइफ ने पाया वो लौटाना है सोसाइटी को कुछ। एक तो ये ड्राइविंग फोर्स है। दूसरा एक खोज है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की, अपना इवॉल्व करने की फिजिकल एंड आत्मिक लेवल पे, वो एक खोज है, ड्राइविंग फोर्स। और बाकी डे टू लाइफ में जो छोटे मोटे लक्ष्य आते हैं एंड वो तो आते ही हैं। सो दैट इज, बट अल्टीमेटली ये है कि जो चाइल्डहुड में टाइम टू टाइम आता रहा कि मतलब कि ये एरिया में लगा कि उस टाइम पे मुझे वो चीजें मिली होती तो मतलब बड़ा डिफरेंट होती चीजें। जैसे एक्टिविटीज करने की इच्छा होती थी तो मतलब वो उस टाइम पे तो टेक्नोलॉजी इतनी वो नहीं थी एडवांस। आई एंड थिंक इसीलिए शायद मैं आपको बीच में काट रहा हूँ, क्योंकि हाँ इसीलिए शायद आप वो जिंदगी अब अपने बच्चे के साथ उसकी आंखों में, उसके तरीकों से जीने की कोशिश भी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो बहुत सी एक्टिविटीज बेटे के साथ करता हूँ मैं, विद मतलब वैरायटी ऑफ जुगाड़ एंड ऑल दिस एक्सेसिबिलिटी के साथ, मतलब तो बड़ा मजा आता है। आप मुझे कुछ बता भी रहे थे पिछली बार जब हमारी बातचीत हुई कि आपने शायद कुछ चेस बोर्ड क्रिएट किया। नहीं हाँ, एक्चुअली चेस
मतलब है बोर्ड है जो मैंने मंगवाया है ऑनलाइन, जिस पे ब्लाइंड पर्सन उसे उसमें गोटियां फिट हो जाती हैं हम्म। और वाइट मोहरों के ऊपर उभरा हुआ होता है और ब्लैक के ऊपर फ्लैट होता है, तो टच करके पता लग जाता है कौन सा वाइट है कौन सा ब्लैक है। हम्म। और मोहरे फिट हो जाते हैं, तो उसे मैंने चेस खेलनी सिखाई और उसके साथ थोड़ी चेस खेली मैंने लॉकडाउन में। हम्म। तो मतलब कि किसी टाइम पे मैं वो वाली चेस मेरे को मिली थी तो मैं खेलता था, बट बाद में पढ़ाई वढ़ाई में टाइम नहीं मिला, तो फिर से अपना वो पैशन थोड़ा सा लॉकडाउन में मैंने रिजुविनेट किया। क्या और बात है। कई चीजें मैंने बेटे के साथ करता हूँ, मतलब क्रिकेट बॉल है तो वो रेटल वाली बॉल आती है तो उससे थोड़ा आवाज आती है, तो वो उसमें मतलब उससे क्रिकेट भी खेली है। और कई सारी एक्टिविटीज बहुत सारी मैं, अब चेस बोर्ड पे टिक टैक टो खेला जा सकता है, जैसे मैंने कहा ना कि वो फिट हो जाते हैं मोहरे, हाँ तो वो जी। तो टिक टैक टो भी खेल लेते हैं उस पे। एंड एक्सेल शीट पे भी टिक टैक टो खेली जा सकती है। तो मतलब बहुत सारी चीजें जुगाड़ के साथ मैंने, बिजनेस गेम है तो उसके एक्सेल शीट पे वो मैं डेटा शीट बना लेता हूँ, तो नोट तो कितना काउंट करूंगा मैं उसके साथ, हम्म। मतलब एक्सेसिबल भी नहीं होता, तो मैं अपना अपना जो रिकॉर्ड है वो एक्सेल शीट में बना लेता हूँ, वो फिजिकली काउंट करता रहता हूँ। बहुत बढ़िया। हाउसी हाउसी है तो उसकी मैं मतलब अपनी टिकट तो एक्सेल शीट में बना लेता हूँ, मतलब रो कॉलम में, और उसमें स्लैश लगा लेता हूँ जो जो कटता जाता है, मतलब तो हाँ। उसके साथ हाउसी खेल लेता हूँ इस तरह से। क्या तो बात मतलब बहुत सारी चीजें करता हूँ। है सर। आई एम रियली रियली यू नो हैप्पी दैट मतलब आज मैं लिटरली आज इसीलिए मैंने अपने व्यूअर्स को बोला था, क्योंकि मेरी शायद इनसे पहले भी ये कन्वर्सेशन थोड़ी थोड़ी हुई थी जब मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि आकाशदीप जी क्या क्या करते हैं। आज शायद व्यूअर्स आप लोग देख पा रहे हैं जीवन जीने का एक बहुत अलग नजरिया। बहुत लोगों ने इस क्राइसिस सिचुएशन के अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप करी। बहुत लोगों ने डिप्रेशन में चले गए। बहुत ऐसे केसेस निकल कर आ रहे हैं। बट मैं कहता हूं कि अगर आज आप ये इंटरव्यू को सुन रहे हैं, I am so hopeful that this interview will give you a lot of new hope. आकाशदीप जी, मैं आगे बढ़ता हूं और एक सेकेंड राउंड हमारा सेकेंड फेज ऑफ और सेकेंड राउंड की तरफ बढ़ता हूं। और ये सेकेंड राउंड एक इंटरेस्टिंग राउंड है जिसका नाम है रैपिड फायर। ओके, रैपिड फायर। रैपिड ओके। फायर, तो मैं आपसे एक शब्द मैं बोलूंगा और उस हाँ जी। शब्द को सुनने के बाद आपके दिमाग में जो भी पहला शब्द या सेंटेंस आए, आपने वो बोलना है। कुछ ज्यादा ओके। सोचना नहीं है। वट एवर कम्स इन योर माइंड, आपने सिर्फ वो बोलना है। अच्छा, हमारे साइकोलॉजी में इसे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट कहते हैं, लोगों के अंदर से कुछ निकालना होता है, तो हम उसे कहते हैं कि वर्ड देंगे, पहला जो थॉट है वो बोलो बिना प्रोसेस किए। तो उसके सबकॉन्शियस से कुछ भी बाहर निकालना होता है, तो ये तरीका होता है। क्या बात है। सो आज देखते हैं आपके सबकॉन्शियस से हम कुछ निकाल पाते हैं कि नहीं। सो अच्छा। मेरा पहला शब्द है आपके लिए सेल्फ मेड। सेल्फ मेड। अपार्ट आई फ्रॉम थिंक डॉक्टर आकाशदीप अरोड़ा। existence is neither in is in dependence nor in independence. It is in interdependence. Nothing is self-made. क्या बात है। क्या बात है गुरु। uh, हर मोमेंट, पूरी कायनात, बहुत से शख्स, एक चीज याद नहीं आ पा रही, मेरी मदर, कल जिनकी डेथ एनिवर्सरी थी, पहली गुरु, परमपिता ईश्वर, मेरी पहली टीचर जिन्होंने मेरे को पीछे अलग से ले जाके इंग्लिश की क्लास में बिठा के लिखने की प्रैक्टिस कराई और एहसास कराया कि मैं स्कूल में पढ़ने खेलने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए आया हूँ। मेरे पहले बॉस आ रहे इसमें, जिन्होंने ये कहा कि आपको ये नहीं बताया, कहा कि मतलब आपको कैसे काम करोगे, बल्कि ये पूछा कि क्या फैसिलिटीज चाहिए आपको काम करने के लिए, और मैंने जो फैसिलिटीज बताई मेरी टेबल पे पहले पहुंच गई थी मेरे पहुंचने से। क्या बहुत बात कुछ है। याद आ रहा है। क्या बात है। आई थिंक सैल्यूट टू ईच वन ऑफ
द पर्सन यू आर रेफरिंग टू, जिनकी वजह से शायद आज उनकी सपोर्ट, उनकी सोच, एक सकारात्मक सोच की वजह से शायद आज एक एक आपको आपकी लाइफ जर्नी आगे बढ़ाने में बहुत योगदान मिला। एंड एक व्यक्ति, मेरा सन 6 महीने का था, उस मेरा फोन पड़ा हुआ था बेड पे, मैं बड़ा डिप्रेस्ड मूड में था उस दिन, और उसके हाथ में फोन पहुंच गया मेरा। मैंने सोचा कैसे पहुंचा, फोन तो इतना दूर रखा था, फिर थोड़ी देर दूर रखा, मैं देखा वो चादर खींच लेता है और फोन उसके हाथ में हो जाता है, क्योंकि वो चल मूव तो कर नहीं सकता था। मूव नहीं कर मैं कहा सकते। 6 महीने का बच्चा जब इतनी पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकता है, व्हाई नॉट आई, और पढ़ने बैठ गया था, अपनी तैयारी करते। क्या बात है, व्हाई बहुत नॉट, व्हाई नॉट दिस दैट 6 ट्रू, मंथ ट्रू, चाइल्ड, व्हाई नॉट माय गुरु। ट्रू, 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 ट्रू। मेरा तीसरा शब्द है फैमिली। वसुधैव कुटुंबकम, मेरा खुद की फैमिली प्लस जो भी व्यक्ति दिल से जुड़ाव रखता है, जो व्यक्ति खुशी में मेरी खुश होता है, दुख में मेरे जिस व्यक्ति एम्पैथी फील करता है, हर व्यक्ति मेरी फैमिली का हिस्सा है, और आने वाले समय में जो व्यक्ति ऐसी स्थिति में होगा वो मेरी फैमिली का हिस्सा होगा। क्या बात है। एजुकेशन। An education for which where fishes need not climb trees and eagles are not forced to swim in the water. किसी दिन अगर ऐसी एजुकेशन पॉलिसी आई तो वो मेरा ड्रीम होगा, बिकॉज आज जो एजुकेशन है रोट लर्निंग वाली, दैट इज नॉट माय ड्रीम एजुकेशन। क्योंकि 6 साल मैंने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में बिताए हैं, तो मतलब मेरी एक ड्रीम एजुकेशन पॉलिसी मैंने सोची है कि कभी वो ऐसी एजुकेशन कुछ कुछ हम प्लानिंग करते रहे हैं, मतलब सीसी पैटर्न भी आया है, बट एक दिन ऐसा हो, ये मेरा सपना है एजुकेशन के बारे में। क्योंकि हम मतलब एजुकेशन वो होनी चाहिए जो इंडिविजुअल का स्पेसिफिक टैलेंट और उसका जो स्पेसिफिक पोटेंशियल है उसकी रियलाइज कराए, उसकी निजी नियति तक उसको पहुंचाए, फुल्ली एक्सप्रेस कराए। ये नहीं हो कि उसको जो वो नहीं है उस तरफ ले जाने के लिए बाध्य करे। हर पर्सन का अपना एक इनहेरेंट पोटेंशियल। पोटेंशियल होता है, उसको बाहर लाने के लिए एजुकेशन को काम करना चाहिए। एंड आई एम कंप्लीटली विद यू ऑन दिस पॉइंट। आई ऑल्सो, बिकॉज यस यस, नहीं नहीं बिल्कुल, बिकॉज मेरा भी यही ऑनेस्टली मानना स्पीकिंग, आज आपने कहा दिल की बात कहूँ तो, है। बट हाँ, मेरी सारी मतलब अंदर की बात ही फ्लो होगी नहीं कि नहीं बिल्कुल। आरएस बनने तक, मैंने बचपन से लेकर आरएस बनने तक 95% नॉलेज जो रट्टे लगा के प्राप्त की थी वो अभी काम नहीं आ रही है। जो भी नॉलेज मेरे काम आई मतलब वो एजुकेशन सिस्टम ने नहीं सिखाई थी, कहीं और से मैंने प्राप्त करी जो आज फील्ड में बिल्कुल काम आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सेम, आई थिंक आई शेयर द सेम थिंग, बिकॉज मेरे बिजनेस के अंदर शायद आज मैं एक मैं इंडिया का पहला बिजनेस एंड परफॉर्मेंस कोच हूँ, सर्टिफाइड बाय सर्टेन वर्ल्ड एजेंट्स। तो जो वो मॉडल्स मैंने आज सीखे, जिस तरीके से वो अप्लाई कर पा रहा हूँ, हाँ, बहुत बड़ा योगदान उन एक्सपीरियंशियल लर्निंग्स का है जो टीचर्स से, गुरुओं से मिलती रही, बट उस कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन का जो वर्ड्स के हिसाब से उन किताबों में पढ़ी, शायद वो कहीं काम नहीं आई उतनी जितनी यू नो। इसीलिए आई थिंक बहुत मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू का समर्थन करता हूं कि एजुकेशन सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज मैं शायद मैं इसमें घमंड नहीं फील कर रहा, ना ही मैं इसको डिमीन कर रहा हूं, ना ही मैं किसी आईआईटी से हूं, ना ही मैं किसी आईएम से हूं, लेकिन आज मैं शायद एक ऐसी इज्जत, एक ऐसे ओहदे को कमा चुका हूं जो शायद मुझे ये डिग्रियां भी ना दे पाती। और एक अलग अलग, हाँ, सो एक पर्सपेक्टिव एक अलग है जीवन का। बट चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं बस अपनी ये बात नहीं करता। बस एक लाइन में कहूंगा कि ये नहीं कहूंगा कि दैट नॉलेज इज मतलब नॉट नेसेसरी, हाँ, बट साथ में मतलब उनके इनहेरेंट पोटेंशियल को मतलब जानते हुए उनको, आइडेंटिफाई यस करना और यस उनको यस, डेवलप करना, वो एजुकेशन का पार्ट जरूर होना चाहिए। मतलब बिल्कुल बिल्कुल।
हाँ मैं आकाशदीप जी और एक चीज का फेवर में हूं। मैं ये मानता हूं कि सारी उम्र हम लोग एक चीज के इर्द गिर्द घूमते हैं जिसका नाम है पैसा। बिल्कुल। और चाहे बेसिक एक घर चलाने के लिए पैसा चाहिए हो, चाहे अपनी ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए हो, चाहे अपने ड्रीम्स फुलफिल करने के लिए चाहिए हो, लेकिन उस पैसे के बारे में मैं 24 साल तक का या 22 साल तक का हो जाता हूं, ग्रेजुएशन कर लेता हूं, तब तक भी कोई ऐसा फंडामेंटल सब्जेक्ट नहीं है जो मुझे यह समझाता हो कि सेविंग्स की पावर क्या होती है। जो कि शायद 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं से शुरुआत कर सकता हूं, शायद मैं उससे भी पहले से कर सकता हूं। और जब तक शायद मेरी एक इंजीनियरिंग पूरी हो, जब तक बेसिक ग्रेजुएशन पूरी हो, मेरा छोटी छोटी सेविंग्स की वजह से एक बहुत अच्छा अपना पर्सनल ग्रोथ हो सकता है। लेकिन मेरे को उसके बारे में कोई पढ़ाई नहीं कराई जाती। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं बिल्कुल। बट But it will be a long discussion. So we can do it later. So the next word for you is RAS, Rajasthan Administrative Services. इसमें जो वर्ड सर्विस है, it should be the most important word among all these three words, कि मतलब we are here for that thing, कि हम किसी भी रूप में हम कम्युनिटी को सर्व कर सकें। बिल्कुल। हमने मैंने जब अपने टेन्योर में इंक्लूसिव एजुकेशन सेल को जब एजुकेशन डिपार्टमेंट में हेड कर रहा था, और हमने ब्लाइंड बच्चों को जब मोबाइल और लैपटॉप दिए थे, और एक ब्लाइंड बच्ची का मेरे पास कुछ टाइम बाद विश करने के लिए फोन आया था आफ्टर ट्रेनिंग में मिली थी मेरे को, और उसने मैंने उससे फीडबैक लिया कि आपने क्या यूज किया इन दोनों डिवाइसेस का। तो शी सेड कि मैं अब नोट्स बनाती हूँ, लैपटॉप पे टाइपिंग स्पीड अच्छी हो गई है, मैं बुक्स टेक्स्ट बुक्स हमने कन्वर्ट करके दी थी एक्सेसिबल फॉर्मेट में राजस्थान बोर्ड की, तो टेक्स्ट बुक्स में उसमें पढ़ने लग गई हूँ आपकी हेल्प से। अब किसी से रीडिंग नहीं कराती, पहले दीदी से कराती थी। और व्हाट्सएप पे हमने ग्रुप बना लिया, हम नोट्स भी शेयर कर लेते हैं, और कुछ एप्स की जो ब्राइट बच्चे हैं लिंक्स भी शेयर कर देते हैं। तो मतलब काफी अच्छा ये सब यूज हो रहा है। मैं बाद में पूछा बेटा आपके पापा क्या करते हैं, शी सेड सर पापा मजदूर हैं। और फिर एंड में उन्होंने बड़े थैंक्स वार्मली कहा। दैट वाज द मोस्ट सेटिस्फाइंग मोमेंट ऑफ माय tenure of RS SRS. job as RS. So that day I realized the thing कि मतलब इस जॉब में हम क्या कर सकते हैं, मतलब क्योंकि एक मजदूर वर्ग की लड़की के लिए अगर हम सेंसिटिविटी के साथ काम करें और समझें, तो उस गर्ल के लिए वो चीजें डिवाइसेस का पहुंची तो ये चीजें वो कर पाई। बिल्कुल। तो पॉइंट इज दैट कि उस दिन मेरे को रियलाइज हुआ कि तीनों वर्ड्स में से द वर्ड सर्विस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। ट्रू ट्रू ट्रू। नेक्स्ट वर्ड है आकाशदीप जी, ब्लाइंड। ब्लाइंड। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं? हम दोनों एक जगह पे बैठे हो एंड कोई मतलब मिनिस्टर भाषण दे रहा हो और हमें नोट्स बनाने हो, हमें बॉस ने कहा हो कि आप नोट्स बना के लाइएगा, मंत्री जी क्या बोल रहे हैं जो भी बोले, अचानक लाइट चली जाती है। मंत्री जी तो वेट करेंगे नहीं कि लाइट आए और वो फिर अपनी बात करें, ही हैज अनदर असाइनमेंट, तो वो बोल के चले गए। अब मैं तो ब्रेल में या लैपटॉप में या जो भी अपने एक्सेसिबल डिवाइस में नोट कर रहा हूँ, आप कागज पेन पे नोट कर रहे हैं, किसका मिस होगा? मेरा ही मिस होगा। और बाद में रिक्वेस्ट कौन करेगा कि मुझे नोट्स दे दो यार, अपने थोड़ा नोट करा दो? मैं ही आपको बोलूंगा अगर आप और मैं साथ बैठे हैं तो। तो ब्लाइंडनेस इज समथिंग कैटेगरिकल और रिलेटिव या सिचुएशनल इंडिपेंडेंट? सिचुएशनली डिपेंडेंट। तो इसलिए बस यही कहना चाहूंगा कि ओवर डिपेंडेंस ऑफ वन सेंस इज आल्सो ब्लाइंडनेस। वेरी गुड। आई थिंक ऐसा सवाल मेरे से आज तक शायद ही किसी ने कुछ पूछा। एक्चुअली वही मैं तो नजरिया चेंज करने के लिए बैठा हूँ आज यहाँ पे, मतलब नया नजरिया, मतलब ये नहीं कहूंगा कि फिजिकल ब्लाइंडनेस कुछ नहीं होती, बट एक डिफरेंट नजरिया भी हो सकता है ना। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। वेरी ट्रू एंड वेरी वेरी ट्रू। आई थिंक आई गॉट योर मैसेज।
क्योंकि यहाँ पे अभी मैं टॉकिंग सॉफ्टवेयर से लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, आपके साथ इस मोमेंट पे मैं इंटरेक्शन कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ माय टॉकिंग सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे तो कोई ब्लाइंडनेस नहीं आ रही, राइट? बिल्कुल जहाँ पे मतलब बैरियर है वहीं पे तो ब्लाइंडनेस है ना, बिल्कुल है ना? ये बिल्कुल। बात कहना चाह रहा हूँ। आपकी संस्थान इंदिरा गांधी पंचायती राज एंड ग्रामीण विकास संस्थान, जहां आज आप डिप्टी डायरेक्टर हैं, जहाँ पे भी मैं काम कर रहा हूँ आज ये है, फ्यूचर में कोई और प्लेस होगा। पहले मतलब इट वाज सर्व शिक्षा अभियान, एवरी प्लेस। अभी मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ, एवरी प्लेस जहाँ पे मैं हूँ दैट इज माय कर्म भूमि। गुड। मेरा ये जो थॉट है और एक इनिशिएटिव है इंडिया बाउंस बैक, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली वंडरफुल इनिशिएटिव बिकॉज इट इज फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म। इस जहाँ हर जगह फियर का माहौल है, नकारात्मकता का माहौल फैलाया जा रहा है, मतलब हर जगह नीजर्क रिएक्शंस आ रहे हैं, उसमें एक बाउंस बैक की थॉट, डेफिनेटली फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, really means a lot to me. And finally, the last word is India, इंडिया Bharat. full of diversities, full of contradictions, but still I love my India. Still I love my India. Wonderful. I think that's really wonderful. बहुत बढ़िया जवाब। एंड एक नया, मतलब जो मेरे से सवाल था अभी तक मेरे दिमाग में घूम रहा है। आई थिंक you gave the answers in a wonderful way. Next, move to the round 3. Round 3 is called Okay. hypothetical questions. ओके, कल्पना के क्षेत्र में ले जा रहे हैं आप। कल्पना के क्षेत्र में। आप साइकोलॉजी से बिलीव करते हैं, आप आई थिंक और अच्छे से इसको समझ पाएंगे। आप इंक्लूजन की बात करते हैं, आप डिसेबिलिटी की परिभाषा को समझाने की कोशिश करते हैं, आप इस चीज के लिए बहुत टाइम से अग्रसर तरीके से आगे बढ़कर इन चीजों पे, मुद्दों पे बात करते हैं। अगर कल को आकाशदीप जी आपको मिनिस्टर बनाया जाता है, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के लिए। ओके, मिनिस्टर तो मिनिस्टर ब्यूरोक्रेट ही है। रिटायरमेंट तक तो एज्यूमिंग, करेक्ट, तो इसीलिए हाइपोथेटिकल है। एज्यूमिंग आपको कल अपॉर्चुनिटी मिलती है और आपको मिनिस्टर बनाया जाता है, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, कौन से ऐसे 3 इनिशिएटिव्स होंगे या कौन से ऐसे 3 प्रायोरिटी पे चीजें होंगी जो आप इंप्लीमेंट करना चाहेंगे? ओके, प्रायोरिटी पे 3 थिंग्स। देखिए अंशुल जी, हमारा एक 2016 में राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। बहुत ही बढ़िया सरकार का इनिशिएटिव है, बहुत ही पावरफुल कानून है, वन ऑफ द बेस्ट डिसेबिलिटी एक्ट्स इन द वर्ल्ड मैं कहूँगा। जब मैंने इसे पढ़ा मेरे को लगा, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन इज क्वाइट स्लो। मतलब इसके बहुत से प्रावधान है जिसको लागू नहीं किया गया, बहुत सी स्टेट्स में अभी तक इसके रूल्स ही नहीं बने। मतलब और डिसेबिलिटी कमिश्नर्स हैं जिनकी इसमें मतलब अभी भी बहुत सी जगह स्टेट से फुल टाइम डिसेबिलिटी कमिश्नर अपॉइंट नहीं हुए हैं। फॉर एग्जांपल स्पेशल बेंच इसमें हर डिस्ट्रिक्ट में डिसेबल पर्सन्स के लिए अलग से स्थापित होनी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में वो अभी बहुत सी स्टेट्स में नहीं हुई हैं। तो मतलब फॉर एग्जांपल बहुत से ऐसे प्रावधान हैं इसके, तो वो अगर मतलब इस एक्ट को ही अच्छे से लागू कर दिया जाए, मतलब तो ही हमारा बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब क्या बात है। सो आप अगर मिनिस्टर बनते हैं तो आप इस सबसे पहला तो पहला इनिशिएटिव यही लेना चाहेंगे कि आप इस एक्ट को फुल फ्लेजेड, जैसे फुल थ्रॉटल में ये लॉन्च होना चाहिए, आप वैसे लॉन्च करेंगे? हाँ, तो इट विल बी बिग गेम चेंजर एंड बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा डिसेबल पर्सन्स की लाइफ में अगर इस एक्ट को। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इस एक्ट की ट्रेनिंग,
कि एक्ट की अवेयरनेस और ट्रेनिंग जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, स्पेशली जो पुलिस पर्सन हैं, जजेस हैं, सबको इस एक्ट के बारे में, क्योंकि एग्जीक्यूट तो वही लोग करेंगे, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के, तो अगर इसकी अवेयरनेस हो जाए कि एक्ट के जो जो प्रावधान है, तो इसका एग्जीक्यूशन तभी बहुत अच्छा होगा। तो ट्रू। सभी लोगों को, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है, पीआरआईज हैं, सबको इसके बारे में एक अच्छा सा कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग कराई जाए, प्लस उनको असिस्ट किया जाए इसका एक अच्छा हाउ डू विल इम्प्लीमेंट इन देयर डिपार्टमेंट एक्शन प्लान बनाने में। तो एक इम्पोर्टेंट थिंग है कि सुगम्य भारत अभियान, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन जो है उसको स्पीड अप किया जाए। ट्रू। मतलब उसमें बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव थे, बट उनको अभी थोड़ा स्पीड अप किया जाए तो भी बहुत अच्छी एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो बाकी कुल मिला के कुछ कई सारी चीजें हैं, बट मेनली तो करने के लिए तो बहुत अगर कुछ है, बट बेसिक चीजें आई थिंक बहुत सारी वैरायटी ऑफ चीजों की वजह बेसिक्स अगर कुछ चीजें हो जाएं तो दैट विल बी वंडरफुल। ग्रेट सर, वंडरफुल आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपके पास एक, कहते हैं ना, अगर आपके पास अलादीन का चिराग आ जाए या मैजिक वैंड आ जाए, सो इफ यू हैव द पावर टू गिव वन पावर टू ईच एंड एवरी ब्लाइंड पर्सन इन द कंट्री, व्हाट वुड दैट बी? क्या पावर होगी जो आप हर एक ब्लाइंड व्यक्ति को देना चाहेंगे? उससे पहले मैं एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आपसे भी कल्पना कराऊंगा आज मैं। प्लीज। चलिए, तो है ना, मैं सोच रहा हूँ इतनी देर से मैं पूरी ही सवाल दिमागी पूछ रहा कसरत हूँ। मैं ही कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा रिवर्स करते हैं, रोल रिवर्सल करते हैं। करेक्ट, प्लीज। हाँ, तो क्या आपको लगता है कि इस यूनिवर्स में एक ही प्लेनेट पे लाइफ है? नहीं, और प्लेनेट में भी है। चलिए, तो एक ऐसे प्लेनेट पे आपको शिफ्ट कर देते हैं जहाँ पे लाइफ है, हम्म। बट लाइफ एक जैसी हर प्लेनेट पे जरूरी थोड़ी है, ये भी जरूरी फॉर्म नहीं है। डिफरेंट हो सकता है। बिल्कुल। वहां पे आपको और आपके बहुत सारे अर्थ से कुछ साथियों को शिफ्ट किया, बट वहां पे ऑलरेडी जो लोग हैं सभी ब्लाइंड थे, वहां पे साइट का कॉन्सेप्ट नहीं था। अर्थ से जो ओके। लोग गए, कुछ माइनॉरिटी के लोग, उनके पास विजन था, साइट थी। अब आप लोग कहेंगे वहां पे, बट लाइफ अगर लोग देख नहीं सकते तो वो कैसा डिजाइन करेंगे? वहां पे जो सिर्फ ब्रेल बुक्स चलती होंगी, हम्म। वहां पे जो लैपटॉप है, मोबाइल है, उसमें डिस्प्ले नहीं होगा, हम्म। कैमरा नहीं होगा, हम्म। राइट? ट्रू। ट्रू। वहां पे जो साइन बोर्ड होंगे वो ब्रेल में होंगे, सब कुछ ऐसा होगा जैसा ब्लाइंड पर्सन अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग बनाएंगे, सब कुछ पॉलिसीज वॉलिसीज सब। बिल्कुल। अर्थ से जो लोग, आप कुछ लोग चले गए माइनॉरिटी में, आप कहोगे कि सर हमारे अकॉर्डिंग बनाओ। हम्म। वो लोग क्या कहेंगे? बजट नहीं है। हम्म। आप कहोगे डिस्प्ले लगाओ, कैमरा लगाओ डिवाइसेस में, कंपनी कहेगी डिमांड ही नहीं है, मेजोरिटी लोग तो ये यूज नहीं करते, आपके लिए स्पेशल खर्चा क्यों करें हम? हम्म। सब चीज आपके, आप कहोगे अरे हम माइनॉरिटी में, तो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमारा इंक्लूजन करो, हम्म। एक्सक्लूजन हो रहा है। हम्म। एंड में क्या सॉल्यूशन होगा? आप कहोगे हमें भी तो पॉलिसी मेकिंग में शामिल करो, हमें रिप्रेजेंटेशन दो, ट्रू। हमें रिप्रेजेंटेशन दो, हम्म। हमें कुछ अपनी पार्लियामेंट में 5% लोगों को लो, ब्यूरोक्रेसी में कुछ परसेंटेज में लोगों को लो, सब में लो, तो हम हमारा कुछ रिप्रेजेंटेशन हो, डिसीजन मेकिंग में तुम्हारा रोल ही नहीं है, हम्म। तब तो जाके आपकी फ्रेंडली पॉलिसी बनेगी। बिल्कुल। अब इसमें दो बातें उभर के आ रही है, आप समझ पा रहे हैं? हम्म। पहली बात तो हमारे यहाँ पे जो चीज है, एबिलिटी डिसेबिलिटी का इश्यू तो है ही, बट एबिलिटी डिसेबिलिटी के अलावा ये मेजोरिटी माइनॉरिटी इशू भी है। ट्रू। यस और नो? बिल्कुल है। है ना, कि हम्म। अगर मेजोरिटी पीपल अगर ब्लाइंड होते या डिसेबल होते तो पॉलिसी अलग होती। आप लोग एक्सक्लूजन कर कंप्लेन कर रहे होते, यह होता या नहीं होता? बिल्कुल कर रहा होता, और आप मेरा इंटरव्यू ले रहे होते। ठीक है। दूसरी बात
कि अगर डिसेबल लोगों का पॉलिसी मेकिंग और इन सब में इनमें मतलब रिप्रेजेंटेशन हो, हम्म, मतलब लोअर से लेकर हायर लेवल तक, मतलब जो लेजिस्लेचर से लेकर पंचायती राज से लेकर सब जगह, तो कहीं ना कहीं वॉइस सुनी जाएगी बिल्कुल। या पॉलिसी मेकिंग में उनका पार्टिसिपेशन होगा। हम्म, जैसे अपना डिसेबिलिटी एक्ट है, एक एग्जांपल है कि मतलब विदाउट डिस्कशन पास हो जाता है, मतलब हम्म, पार्लियामेंट में। तो अगर डिसेबल पर्सन्स भी होंगे तो वो अपने इनपुट्स उनके आएंगे, मतलब कुछ रिकॉर्ड में, ऑल दिस वी कैन अंडरस्टैंड, मतलब। ट्रू। तो मतलब कंसल्टेशन का लेवल थोड़ा वाइडर हो जाता है ना। बिल्कुल है। तो अब ये चीज रही, मतलब। तो अल्टीमेटली आई वाज सेइंग कि एक चीज जो ये है कि मतलब जो इम्पोर्टेंट, पावर आप दे पाए, हाँ। कि ये है कि पावर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, क्या ये बात है। है ना। तो आई इसको थिंक ये सीधा बिल्कुल ही कह देता तो शायद आप उतना सेंसिटाइज नहीं हो पाते, बट थोड़ी कल्पना करानी पड़ी, घुमा के दिया मैंने जवाब। बहुत अच्छा किया सर। आई थिंक ये खाली मेरे लिए कल्पना नहीं थी, इस वक्त जो भी व्यूअर देख रहे हैं वो सब इन बातों की गहराइयों को समझ पा रहे हैं और महसूस कर पा रहे हैं। आई थिंक यस, दिस इज वेरी राइट। रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेशन होना आज कुछ के कंट्रीज में है, मतलब कुछ कंट्रीज में है। मैंने सुना है कि शायद, आई एम नॉट श्योर, बट शायद साउथ अफ्रीका में 5% है, या कुछ कंट्रीज में सच चीज थिंग इज देयर। वंडरफुल। अब चलते हैं सर अपने लास्ट फेज की तरफ, लास्ट राउंड की तरफ। लास्ट राउंड है रिलेटेड टू, कंप्लीटली रिलेटेड टू लास्ट 120 डेज। ओके, जो हमने इस इशारा समझ पा कोविड रहा हूँ में आपका। इस कोविड में हमने देखा, झेला, समझा। मैं उससे रिलेटेड आपको पूछना चाहूंगा और मेरा पहला सवाल आपसे यह है, 23 मार्च 2020 लॉकडाउन का पहला दिन, उस दिन से आपकी क्या मेमोरीज जुड़ी हैं? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस और व्हाट आर द मेमोरीज ऑफ दैट डे फॉर यू एंड पीपल अराउंड यू? देखिए, उस दिन स्पेसिफिक दैट डे तो मतलब यही था कि लगा कि चलो 21 दिन की बात है, चलो मतलब कट जाएगा। और अचानक घर बैठ जाना इतने हेक्टिक शेड्यूल में, पहला तो वो शौक था हम्म, कि मतलब, और दूसरा, एक तो सीडेंट्री लाइफ हो जाना, हम्म, दूसरा चैलेंज, थ्रेट, मतलब ऑफ कैचिंग द इन्फेक्शन, क्योंकि तब ये पता नहीं था कि क्या है, मतलब क्या नहीं है, मतलब ट्रू, ट्रू। हाउस, डर था। मतलब हम्म, अनसर्टेनिटीज। हम्म, तीसरा सप्लाई चेन्स का कट जाना, हम्म, और एक बीइंग डिसेबल पर्सन और वाइफ और बच्चा घर में, हम्म, तो एक ज्यादा थ्रेट था, मतलब कि सप्लाईज कब तक और कहाँ से आएंगी। हम्म, तो ये एक फैक्टर था, मतलब। तो अल्टीमेटली तो कई सारे चैलेंजेस आए, बट वही टेक्नोलॉजी, जैसे ऑर्डर किया ऑनलाइन तो बिग बास्केट के ऑर्डर 5-7 दिन में उन्होंने कहा डिलीवर होगा, बट वो फिर ऑर्डर कैंसिल हो गया। हम्म, फिर ऑल दिस, मतलब ग्रोसरी का फिर दूसरी जगह से ट्राई किया, कहीं ना कहीं, मतलब बहुत सारे। फिर बेटे को घर के अंदर, बच्चे का हमारे लिए तो चलो ठीक है, बट बच्चे का अचानक पूरा दिन घर के अंदर बंद हो जाना, तो ही वाज वेरी रेस्टलेस। तो उसके साथ जैसे मैंने शेयर किया, बड़ा तरह तरह से उसको एंगेज किया मैंने, हम्म, क्योंकि वो मेरे साथ ही हैंडल होता था, तो मतलब वो था, मतलब एक फैक्टर। बट फॉर्चुनेटली मतलब ये था कि वी वर मतलब ये था कुल मिला के कि किसी तरह, मतलब मैनेज हुआ ये फेज मैनेज हुआ, बिल्कुल, का शुरू बिल्कुल, का। बिल्कुल, बिल्कुल। बट अब जैसे जैसे प्रोलॉन्ग होता गया, हम्म,
तो फिर मतलब इट गॉट वेरी वेरी टीडियस। हम्म, बिल्कुल है, मैं समझ सकता हूँ। अब जैसे अभी चीजें हमने रिज्यूम करी और आप जा भी रहे हैं, आप काफी अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के सर्कल में, जो आपका ग्रुप है, आप उन लोगों से भी बातचीत हुई होगी, आपके सीनियर से, सबॉर्डिनेट से। मैं आपसे एक ऐसा पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके हिसाब से इस 120 दिन में अ, हमारी कंट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है इस कोरोना पेंडेमिक का। देखिए, बिकॉज हम लोग, मैं ये सवाल पूछने का एक छोटा सा लॉजिक देता हूँ, क्योंकि हमारी अगर मैं एक अपने आप को एक आम जनता मानता हूँ, और मेरे लिए सोर्स क्या है, मेरे लिए सोर्स है न्यूज चैनल, जिसपे मुझे रिलाई करना पड़ता है कभी कभार, मैं करना नहीं चाह रहा हूँ बहुत सारे न्यूज चैनल्स पे। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर जब आप लोग डिस्कशंस कर रहे थे, तो आपके हिसाब से ओवरऑल इस पर्टिकुलर पैंडमिक ने, जिसको शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अनसर्टेन था, और अभी भी बहुत चीजें अनसर्टेन है, आप फ्रॉम दैट administrative purpose, perspective, how you see it, what kind of impact it has created in the country? देखिए, अल्टीमेटली मेरा जो इस संबंध में आपको शेयरिंग रहेगी कि मीडिया से जो न्यूज़ आ रही हैं सब जगह से आ रही हैं, बट जो ये है कि डिसेबल वर्क की जो बात है, हम्म। सभी वर्क की न्यूज़ आ रही है, हम्म। बट मैं जो डिसेबल कम्युनिटी से टच में हूँ, बिल्कुल। तो उस कम्युनिटी को तो एक तरह से टोटली न्यूज़ मीडिया ने भी क्वारंटाइन कर दिया है, मतलब मेरे ख्याल से तो। मतलब मेरे को ये लग रहा है कि मतलब उनसे रिलेटेड चैलेंजेस तो कोई बात कहीं हो ही नहीं पा रही कि वो किस तरह के चैलेंजेस फील कर रहे हैं, जबकि अ, सबसे बड़ा सबसे बड़ा चैलेंज तो एक डिसेबल कम्युनिटी ने ही फेस किया है, मतलब क्योंकि डिसेबिलिटी प्लस मतलब जो कि वनरेबिलिटीज हैं वो बहुत अलग हो जाती हैं। हम्म। एग्जांपल देता हूँ, हम्म। ब्लाइंड पर्सन का जो काम है ज्यादातर टच से होता है, हाँ जी। और दूसरा ये है कि और कंटेजियन फैलता किससे है सबसे ज्यादा? टच से। टच से। तो अब वनरेबिलिटी ब्लाइंड पर्सन की कितनी बढ़ गई इस पेंडेमिक में। हम्म। अब ब्लाइंड पर्सन अब या तो घर पे बैठ जाए टोटली, हम्म। बट घर पे भी कब तक बैठ सकता है? बाहर निकलता था तो लोग उसका शायद हाथ पकड़ के, आई थिंक, रोड क्रॉस करा सकते थे या कुछ भी था, बट आई थिंक वो सब पहले भी अब। हाँ। पहले तो वो करा सकते थे, बट अब तो ये है ना कि आपने हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, 2 गज की दूरी। हम्म। तो अब उतना इजीली उसके बाहर सपोर्ट मिलेगा जितना आप। और अपना ये बताइए कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का उतना डिसेबल फ्रेंडली है कि ब्लाइंड पर्सन पूरा का पूरा इंडिपेंडेंटली मूव कर पाए? शायद नहीं है। नहीं है। हम्म। फिर पहले तो जहाँ बैरियर होते थे लोग सपोर्ट कर देते थे, तो वो अकेले निकल लेगा, हम्म। स्टिक लेके निकल लेगा, जहाँ बैरियर आएगा लोग सपोर्ट कर देते थे, बट अब मतलब ये है कि जहाँ पे अब बैरियर आएगा तो देयर इज नो गारंटी कि पीपल विल सपोर्ट, बिकॉज उन्हें भी तो पेंडेमिक का फियर है ना। बिल्कुल है। दूसरा, कर्फ्यू एरिया में अगर फंस जाता है तो हम्म। अनदर बैरियर। हम्म। फिर मतलब टच से अगर वो काम करता है तो उसको भी कंटेजियन का फियर है। हम्म। तो जो गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉयज हैं उन्हें अगर वो अगर जॉब पे नहीं जाते तो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। हम्म। देन अगर जाते हैं तो देन देयर इज अ रिस्क। प्राइवेट सेक्टर में जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। और जो प्राइवेट सेक्टर में सर्विस में है, तब रिसेशन में सबसे ज्यादा वनरेबल कौन है? मतलब हम्म। जिस वर्क के प्रति आपका बायस है कि दे आर नॉट प्रोडक्टिव, ये नहीं कहूंगा दे आर नॉट प्रोडक्टिव, बट बायस है, उनकी जॉब सिक्योरिटी सबसे पहले थ्रेट में है। हम्म।
बहुत से पीपल मतलब ऐसे हैं जिनको डिसेबल पर्सन्स हैं जिनको जॉब से निकाला गया है इस पीरियड में, रिसेशन के फेज में। ट्रू। एंड इवन मेरे को कहीं मैंने पढ़ा था कि इंडियन फॉर्मल क्रिकेट टीम के कैप्टन है, मैं वेरीफाइड नहीं है ये न्यूज़, मतलब बट मैंने कहीं पढ़ा है कि एक क्रिकेट टीम के ब्लाइंड क्रिकेट टीम के कैप्टन है, वो उनकी जॉब चली गई है एंड वो काफी रुस्ट थे कि मतलब आप मेरे को अवार्ड तो दे देते हैं, सब कर देते हैं, जबकि मैं कई वर्ल्ड कप इंडिया को जिता चुके हैं वो, और आप मुझे जॉब की सिक्योरिटी तो क्रिएट नहीं कर पा रहे, तो फिर अवार्ड्स का क्या मतलब है। तो ऐसी भी घटनाएं हैं। सो प्लस देयर आर सो मेनी इवेंट्स, मतलब इंडिविजुअल केस स्टडीज मैं दूं मतलब, तो मतलब कि एक दो केस स्टडी आपको दे देता हूँ जो मैंने न्यूज में कहीं कोने में कहीं मतलब हमारा जो मीडिया है, मतलब जो ब्लाइंड डिसेबल पर्सन्स के लिए है, उन पे मैंने कहीं सुनी कोने में कि मदर को हॉस्पिटल में क्वारंटाइन कर दिया बिकॉज कोरोना, बच्चा इंटेलेक्चुअली डिसेबल है, घर में है, अब वो किसी से हैंडल नहीं हो रहा, अब रिलेटिव्स को वो कॉल कर रही है तो वो कोई कोरोना के फियर से घर में जाएगा नहीं, वो विल हैंडल द चाइल्ड। तो ही इज सेइंग कि मतलब कोई या तो बच्चे को हॉस्पिटल लाए या मतलब उसको होम क्वारंटाइन किया जाए मदर को, या कुछ किया जाए, मतलब या कोई मेडिकल गवर्नमेंट हेल्प करे, मतलब तो डिसेबल केस पर्सन्स के केस में तो स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए ना। देयर वाज अ केस जहाँ पे ब्लाइंड लेडी थी, मतलब एमपी में किसी शहर में अकेली थी वो, एंड मतलब some mishap happened to her, मतलब हस्बैंड वाज इन राजस्थान समवेयर और उसने जाने की परमिशन नहीं दी गई लॉकडाउन में, मतलब बट ही कुडंट वेंट देयर टू सपोर्ट हर। तो ऐसी भी कुछ न्यूज़ है मतलब। न्यूज़ है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो इंडिविजुअल केस स्टडीज आर देयर, बट ये कि मतलब तो कोई मतलब डिसेबल कम्युनिटी को जो स्पेशल सपोर्ट चाहिए मतलब इस टाइम में, तो मेरा कहना है कि मतलब समथिंग एक्स्ट्रा शुड बी मतलब देयर फॉर द कम्युनिटी मतलब। काशदीप जी, मेरा एक सिंपल सीधा सीधा सवाल है आपसे। अगर इस तरह के चैलेंजेस, बिकॉज आप इस कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं, अगर इस तरह के चैलेंजेस जब आपके सामने आते हैं या बातचीत करते हैं, आप किस नजरिए से या कैसे उन चीजों को हैंडल करते हैं? ये आए होंगे पैंडेमिक टाइम में भी आपके सामने बहुत सिचुएशंस आई होंगी, बातचीत हुई होगी, आपने उनको कैसे हैंडल किया? देखिए अल्टीमेटली यही है कि द ओनली वे इज थ्रू नेटवर्किंग, कि जो मतलब किसी को किसी पर्सन से कनेक्ट करा दिया, किसी कोई कंसर्न डिपार्टमेंट है तो उसके थ्रू ऑफिसर को कह के कुछ अगर कंसर्न ऑर्डर निकलवाना है तो उसके लिए उनको रिक्वेस्ट कर दी, मतलब या किसी को कोई नीड है तो किसी सोसाइटी में एमिनेंट व्यक्ति से या वो कंसर्न एनजीओ से मतलब कोऑर्डिनेट करा दिया, कोऑर्डिनेट कर दिया। मतलब जस्ट समझ वही गया। है कि मतलब अपना एक लाइजनिंग जो है उसके थ्रू, बहुत बट अच्छा, इंडिविजुअल बहुत लेवल अच्छा। पे वही मतलब समथिंग। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मेरा अगला सवाल आपसे ही है। अ, एक स्टैटिस्टिक्स मैंने मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था। एज पर अ स्टैटिस्टिक्स, इंडिया इज अ होम टू ओवर 20% of the world's blind population, and currently looking at the crisis situation where no one is sure of the future. अभी भी फ्यूचर को लेकर प्रिडिक्शंस हैं, assumptions हैं, बट कोई सर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। लॉट ऑफ प्रिडिक्शंस आर देयर। हाउ डू यू सी अ न्यू नॉर्मल, एक नया नॉर्मल जो हम लोग बात कर रहे हैं आज के टाइम में, वर्ड यूज कर रहे हैं, न्यू नॉर्मल, आने वाला एक नया वक्त, न्यू नॉर्मल फॉर द disabled people or disabled population of our country? न्यू नॉर्मल फॉर द डिसेबल पर्सन,
of of our the country, country, of the country, yes. in the context of मतलब आने वाला 12 वक्त देखिए, अब सबके लिए, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के लिए पूछा जा रहा है कि आने वाला वक्त कैसा होगा, क्या चीजें हाँ चेंज होंगी, जैसे आप टेक्नोलॉजी के बारे में पहले बात हाँ कर रहे थे, या बहुत सारी डिसेबल्ड देखिए कम्युनिटी को लेकर आप क्या देखते हैं कि जब पूरा इंडिया बाउंस बिल्कुल बैक करेगा तो ये कम्युनिटी के लिए आने वाला न्यू नॉर्मल कैसा होगा आपके हिसाब से? देखिए पॉइंट इज दैट कि सब संभावनाओं की कोई सीमा नहीं होती, व्हाट आई बिलीव हम्म, कि मतलब एक दरवाजा बंद होता है, कई दरवाजे खुलते हैं। हम्म, इसी एटीट्यूड के साथ हमें लाइफ जीनी पड़ती है। बिल्कुल। दूसरी चीज, एक शेर है, तुझ में है अगर इज्जत हीरे की तो अंधेरों में चमक के दिखा। तुझ में अगर इज्जत हीरे की तो अंधेरों में चमक के दिखा, रोशनी में तो कांच के टुकड़े भी चमक लेते हैं। क्या तो बात है! पॉइंट क्या इज बात! दैट कि मतलब और एक बात है कि मतलब कि अल्टीमेटली मतलब अच्छी सिचुएशन में तो कोई फूल भी थ्राइव कर लेता है। हम्म, मतलब बुरी सिचुएशन में थ्राइव करना ही एक एक चैंपियन की वाइज पहचान है। पर्सन की ट्रू। पहचान है। तो ये अब अल्टीमेटली कंटिन्यूसली कंप्लेन करते रहना, क्राइसिस है, क्राइसिस है, क्राइसिस है, मतलब that is not the solution. I am not saying there is not no crisis, but we have to not that time has gone. हम्म, Now we have to think about some breakthrough. ट्रू। At least keep thinking about the breakthroughs. कि what is how to get over the wall. हम्म, तो देखिए ये है कि आज वर्क फ्रॉम होम बड़ा है, बिल्कुल, डिजिटाइजेशन का रोल बड़ा है, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी का रोल बड़ा है। एंड पॉइंट इज दैट कि ब्लाइंड पर्सन ये है कि क्योंकि ये है कि मतलब अल्टीमेटली बहुत सी चीजें एक्सेसिबल हो चुकी हैं, जैसे कि मैंने आपसे शेयर किया था, हम्म, एक्सेसिबिलिटी बढ़ती जा रही है। टॉकिंग सॉफ्टवेयर्स बहुत पावरफुल हो रहे हैं, एक्सेसिबिलिटी के लिए एप्स बहुत सी आ रही हैं। तो जैसे जैसे एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी हम्म, विद टाइम, जैसे मैंने शेयर किया कि जैसे करूं कि जैसे मैं वन ऑफ माय फ्रेंड इज कंप्यूटर इंजीनियर, he is working in the field of software engineering and having clients in many countries. So मतलब तो मतलब एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है तो ही इज हैविंग सच ब्रेक थ्रूज। हम्म, सो मतलब जैसे जैसे एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी हम्म, तो ब्लाइंड पर्सन्स के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बनता जाएगा ट्रू, और नए नए एरियाज खुलते जाएंगे। ट्रू। तो उन्हें उनके लिए बेस्ट ये रहेगा कि टेक्नोलॉजी को अपनाएं, अपनी टेक्नोलॉजी की स्किल्स को बढ़ाएं, मतलब मोबाइल और कंप्यूटर पे, और विद दैट उनके लिए नए नए एवेन्यूज खुलेंगे। उन्हें अपनी एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने पे काम करना चाहिए। चाहिए। और प्लस हमारी एडवोकेसी है कि सरकार को और कंपनीज को वेबसाइट्स को एक्सेसिबल बनाना, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स और एप्स को एक्सेसिबल बनाना, प्लेटफॉर्म्स को जो प्राइवेट कंपनीज है उनको एप्स हैं, वेबसाइट्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं डिफरेंट, उनको एक्सेसिबल बनाना। तो ये सब के लिए एडवोकेसी करना जरूरी है। तो विद दिस हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड ब्लाइंड पर्सन्स के लिए क्रिएट कर सकते हैं। वेरी गुड। आई थिंक दैट्स अ गुड पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा अगला सवाल जिस थीम से रिलेटेड है, आर यू कॉन्फिडेंट दैट इंडिया विल बाउंस बैक? आपका जो क्वेश्चन है वो, आपको क्या लगता है ह्यूमन बीइंग के बारे में? वैसे हम माने ह्यूमन बीइंग ने अपनी जर्नी कहाँ से शुरू करी थी?
सर हमने अपनी जर्नी एज अ एप शुरू करी थी। और जब एप से शुरू करी थी और ह्यूमन बीइंग के रूप में इवॉल्व हुए थे, तो कहाँ पे रहते थे? कहाँ पे रहते थे? हाँ, आई थिंक जंगल्स में रहते थे। जंगल में रहते थे, हम्म, गुफाओं में गुफाओं में। शिकार करके आते थे। और ट्रू। अगर आप वहां पे होते, हम्म। तो आप अभी सुबह दिन भर शिकार करके लाते, हम्म। और घर वाले कहते कितना शिकार करके आए, हम्म। कितने फूड गैदर करके आए, हम्म। राइट? हम्म। करके लाते तो बढ़िया तारीफ मिलती, नहीं करके लाते तो कहते बेकार है, ये तो व्यक्ति बिल्कुल है। ना खा रहा है। बिल्कुल ठीक है। है ना? हम्म। वहां से आज यहाँ पे हम जूम पे बैठ के, आप कहाँ, मैं कहाँ, और इस लैपटॉप के माध्यम से बिना देखे, मैं बिना विजन के आपसे आपने लिंक भेजा जूम पे मेरे को, मैंने जीमेल पे लिंक क्लिक किया बिना देखे, टॉकिंग हम्म। सॉफ्टवेयर के हेल्प से, हम्म। और साइन इन करके आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आपका ह्यूमन जवाब समझ गया। ह्यूमन बीइंग की संभावनाओं की कोई सीमा है? नहीं है। दूसरा मेरा क्वेश्चन, हाँ जी। क्या एक हिस्ट्री में पहले कभी कोई पेंडेमिक आया है? बहुत बड़ा है। कितने बीबानिक प्लेग आई थी, बिल्कुल आई थी। करोड़ों लोग मरे थे, जबकि उस टाइम पे तो कोई ट्रांसमिशन के मीन्स ही नहीं थे, मतलब ट्रू। ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, ये नहीं था, फिर भी पूरी दुनिया में फैल गई थी। बिल्कुल। स्पेनिश फ्लू आया था, हम्म। पूरी दुनिया में फैल गया था। हम्म। आप ग्लोबलाइजेशन को ब्लेम कर रहे हो, तब तक ग्लोबलाइजेशन भी नहीं था, तब भी फैल गया था पूरी दुनिया में, बिल्कुल। करोड़ों करोड़ लोग मर गए थे। हम्म। ठीक है, तब भी ओवरकम किया था ह्यूमन बीइंग ने। यस। आज तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, साइंटिफिक नॉलेज है, इतना कुछ है, और इंफॉर्मेशन है, और वी आर डूइंग मच बेटर देन दैट। यस। तो व्हाई नॉट वी विल बाउंस बैक? क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं? सर वी विल बाउंस बैक। तो आज आज हम आज मुझे आज मेरा सेमी इंटरव्यू मेरा भी हुआ। आई एम रियली रियली हैप्पी द वे यू यू नो डिड ऑल दैट कन्वर्सेशन। वंडरफुल। वो वंडरफुल। क्या कि लाइफ स्किल्स ट्रेनर रहा हूँ ना मैं भी, तो जॉब पे आने से पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का रोल करते करते जब वो हो जाता है ना, तो फिर ऐसे जब मंच पे बैठता हूँ तो थोड़ा सा अपने पुराने रोल में आ जाता हूँ, मैं भी कन्वर्सेशन क्रिएट करना। आप भी जानते हो मेरा एक एक मतलब वो होता है, तो क्रिएटेड बिल्कुल कन्वर्सेशन तो एक अपना पुराना एक अस्त्र होता है ना। अस्त्र बिल्कुल है। बिल्कुल है। वंडरफुल। तो आई एम सेइंग तो दैट। वी विल, हम होंगे कामयाब एक दिन। Wonderful. Thank you so much. And I think India will bounce back. No doubt about it. Finally, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, हाँ, बिल्कुल। मेरे व्यूअर्स के लिए, पूरे देश के लिए जो आज आपका ये इंटरव्यू सुन रहा है, उनके लिए आपके 3 मैसेज या 3 सजेशन फॉर इंडिया टू बाउंस बैक। देखिए, पहली बात, एक चीज आपको समझनी होगी व्यूअर्स के लिए, कि ये रिसेशन जो आया है, अनसर्टेनिटीज आई है, तो लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। हमारी ह्यूमन बीइंग की एक प्रॉब्लम है, हम लाइफ को प्रिडिक्टेबल देखना चाहते हैं, सर्टेनिटीज के रूप में देखना चाहते हैं, है ना? बट ओनली सर्टेन थिंग, ओनली प्रिडिक्टेबल थिंग इन लाइफ इज चेंज। यस। और हम उसको, इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। सो दैट इज वाई हम हमेशा मतलब सफरिंग फील करते हैं, क्योंकि चेंज आता है जब भी हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। तो सबसे पहली चीज देखिए कि कभी बीच बीच में रिसेशन भी आएगा, अप्स भी आएंगे, डाउन्स भी आएंगे, दिस टाइप ऑफ थिंग्स कीप कमिंग, रिसेशन भी आएगा। अब इन चेंजेस में हमें क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल 2008 में रिसेशन आया था, तो तब लोग बहुत दुखी थे, बट एक आदमी का मैंने इंटरव्यू पढ़ा था, उस रिसेशन के बाद उसने क्या किया कि उसने 1 साल, उसको जॉब चली गई थी, तो उसने एक कोर्स किया
इस पीरियड में विदाउट गोइंग इन डिप्रेशन। और जब उसने अपनी स्किल्स को बड़ा अपग्रेड कर लिया और बाद में उसने एक बेटर जॉब ज्वाइन करी और उसकी बाद में काफी मतलब सैलरी, बेटर सैलरी मिलने लग गई उसको। तो उसने यही घर वालों को कह दिया कि आप ये मत समझना कि मैं मतलब इट इज अ बैड फेज या मैं जॉब चली गई है, तुम बस वेट करो कि अपन बेटर टाइम के लिए तैयारी कर रहे हैं। एटीट्यूड, एटीट्यूड। ठीक है। दूसरी बात, अल्टीमेटली एक सजेशन आपको जो मैं दूं कि पहले भी मैंने कहा, लाइफ इज नाइदर इन डिपेंडेंस नॉर इट इज इन इंडिपेंडेंस, इट इज इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस। यानी जी हमारा अस्तित्व ना तो आत्मनिर्भरता में ना दूसरों की निर्भरता में, दूसरों पर निर्भरता में, ये अंतर्निर्भरता में हम इंटरडिपेंडेंट हैं। कोई भी एक दूसरे आइलैंड नहीं है। तो इसलिए पेंडेमिक की सिचुएशन में हम लोगों ने एक जो सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग वाली चीज तो है कि हमें 2 गज की दूरी रखनी है ऑल दिस, बट लोगों से जुड़े। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखनी है, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी है सिर्फ। बिल्कुल ठीक बात है। सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड गलत है। बिल्कुल। हमें आज एक दूसरे की जरूरत से ज्यादा जरूरत है, सिर्फ नेटवर्किंग करें, एक दूसरे के साथ सोचें कि किस तरह से जुड़ना है हमें सोशली या मतलब प्रोफेशनली, सब लेवल पे आपस में जुड़ाव, क्राइसिस में जुड़ाव कम नहीं करना है, जुड़ाव ज्यादा करना। ज्यादा करना है। ठीक है, क्योंकि है ना, इसलिए डिसेबल व्यक्ति, दूसरे एंगल से कहूं कि डिसेबल व्यक्ति भी सोसाइटी का उतना ही हिस्सा है, इम्पोर्टेंट हिस्सा है। मतलब कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे से, तो वो भी आपको लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और आप भी उनके लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब वो सिर्फ आप पे निर्भर हैं, ट्रू। है ना, उनको भी एम्पावर करना है। नेक्स्ट थिंग, if you really want something, the whole universe conspires to give it to you. अगर आप शिद्दत से किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात उसे आपको दिलाने की साजिश में लग जाती है। पॉइंट इज दैट कि हम ऑथेंटिक नहीं है। हम चीजों को चाहते तो हैं, बट ये चाहते हैं कि वो चीज हमें मिल जाए, बट हमारी उस चीज के लिए बट कोशिश या चाहत प्योर नहीं होती है। हम उसके लिए ट्रू एफर्ट नहीं करते, या वो हम रियल में चाहते ही नहीं है। इसलिए या वो चीज हमारे सोसाइटी की दी हुई होती है, सुपर इम्पोज्ड होती है, या हम किसी को खुश करने के लिए वो चीज कर रहे होते हैं। पॉइंट इज दैट कि हमें लाइफ में ये खोजना बहुत जरूरी है कि वो चीज हम क्या हम चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। क्या वो हमारी खुद की चाहते हैं या किसी की सौंपी हुई है? क्योंकि हमारा ट्रू पोटेंशियल क्या है या ट्रू चाहत क्या है पाना बहुत आसान है, बट अगर हमारी वो ट्रू चाहत है, बिकॉज अगर आप जिस काम को आप करते हो उसे लव नहीं करते, आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बिल्कुल है। अगर मेरा जिस काम को अगर आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर इस काम बातचीत को अगर मैं एंजॉय नहीं कर रहा होता, मैं इतने अच्छे से इंटरेस्ट से बात कर ही नहीं पाता। बिल्कुल ठीक गेटिंग मी बात ना। है। और ये अगर मैंने मेरे मन में अगर ये नहीं होता कि मैं कुछ आपको वैल्यू ऐड कर पाऊं, मेरे अंदर वो पैशन ही नहीं होता कि आपसे कुछ। मेरे ख्याल से इतनी देर में मैंने आपसे बात करी, मेरे को नहीं पता कि मैंने कितनी देर बात करी, मेरे को नहीं पता कि कितने मिनट बीते, कितने टाइम बीता, बट अगर मेरे को ध्यान नहीं है, बट मैंने जो बात करी एक एक सेकंड मैंने एंजॉय किया, मैंने दिल से बात करी।
क्या व्हाट बात है। कम फ्रॉम माय हार्ट, है ना। मेरे को नहीं पता, ये मेरा कर्म योग है, मेरे को इस बात के कोई चिंता नहीं है कि मेरे को मेरी इसको लोगों का क्या फीडबैक मिलेगा, नथिंग। मैंने मतलब बिल्कुल मैंने बिल्कुल एंजॉय बिल्कुल। किया बस इस कन्वर्सेशन को, बस बहुत मेरा बढ़िया। काम खत्म। ठीक है, बट ये एटीट्यूड होगा, ये फीलिंग होगी काम को एंजॉय करने की, यू विल लव व्हाट यू डू, लाइफ सफल तभी होगी मतलब। तो इसलिए बहुत अपना पैशन ढूंढना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने आपको तीन टोक, एडवाइस है मेरी। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच आकाशदीप जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच really and really insightful and wonderful conversation, और आधा आई थिंक सेमी कन्वर्सेशन जिसमें आपने मेरे से भी बहुत सारे सवाल किए। एंड आई विल टू जस्ट सम अप, अगर ये इंटरव्यू वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स देख रहे हैं जो शायद जो डिसेबिलिटी लॉ 2016 के अंदर बनाया गया, मैं चाहता हूं कि जो आकाशदीप जी ने बोला, अगर हम उसके लिए कुछ कर सकें, और अगर आप मेरे व्यूअर हैं और इस चीज को देख पा रहे हैं, तो मेरी आपसे एक विनती है कि आप उस लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए अच्छे प्रयास करें। आई थिंक इफ दैट इज द नीड ऑफ द आवर फॉर ऑल द कम्युनिटी, दैट इज रियली गुड। दूसरा, जितने मेरे व्यूअर्स आज इस इंटरव्यू को देख रहे थे, सुन रहे थे, समझ रहे थे, मैं बहुत दिल से होप करता हूं कि शायद आपको अपने जीवन को देखने का एक दृष्टिकोण जरूर बदला होगा, एक नई सोच, एक नई विचारधारा आपको जरूर मिली होगी चीजों को देखने का। कई बार छोटी छोटी चीजों को लेकर हम कितनी बड़ी मुसीबतें या दिक्कतें अपने सामने एक चैलेंज बना लेते हैं। आई थिंक उतना बड़ा शायद जिनके साथ दिक्कतें हैं, हमने उनकी अगर दिक्कतें देखें तो हमारी दिक्कतें उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो मैं अपने आज सारे व्यूअर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, और हाथ जोड़ के विनम्र विनती है कि आज जो आकाशदीप जी ने बोला, हम अपना बहुत बड़ा रोल नहीं, लेकिन एक बिट जितना भी हम आज इस एम्पावरमेंट के अंदर, डिसेबल्ड पर्सन की एम्पावरमेंट के अंदर हम जितना भी रोल प्ले कर सकें, हमें करना चाहिए। और आकाशदीप जी, मैं ये सिर्फ कथनी में विश्वास नहीं रखता, मैं कथनी और करनी दोनों में विश्वास रखता हूं। और मैं आपसे ये एक कमिटमेंट करता हूं, मेरी जितनी भी शक्ति, क्षमता, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एक्सपीरियंस है, जिस भी रूप में मैं आज हूं, मैं किसी भी काम आ सकूं इस कम्युनिटी के लिए, जब भी आपका कोई बड़ा इनिशिएटिव हो, कुछ भी हो, चाहे वो नॉलेज हो, एम्पावरमेंट हो, ज्ञान हो, किसी भी तरीके से मैं किसी काम आ सकूं, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू एंड फॉर द कम्युनिटी। थैंक्स अ लॉट। और मैं अपने व्यूअर्स से भी यही बोलना चाहूंगा कि जहां पर भी, अगर आज आप एक बिजनेस ओनर हैं और आपके ऑर्गेनाइजेशन में हम एक 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 सेगमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहां हम डिसेबल पर्संस के लिए, या हम जिनको दिव्यांग बोलते हैं, आज दिव्यांग के लिए हम एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकें, धीरे धीरे लोगों को अपलिफ्टमेंट कर सकें, एम्पावरमेंट कर सकें। हमें छोटा सा इनिशिएटिव अपने बलबूते पर लेना है, हमें शायद सरकार के ऊपर उतना डिपेंडेंसी या चीजों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। अब आज जो मैं आकाशदीप जी से समझ पाया, मैं एक दर्द को महसूस कर पाया, और उस दर्द को मैं चाहता हूं कि आप लोग भी महसूस करें। जितना जितना हम सबके हिम्मत में हो, हम लोग करें। और सरकार अगर लॉ को अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकती है और बहुत अच्छे प्रावधान निकाल सकती हैं, आई थिंक मैं इस पूरे हक में हूं कि एक इंक्लूसिव सोसाइटी होनी चाहिए, हर एक को समान अधिकार, समान सोच, समान, और सबसे बड़ा जो आज आकाशदीप जी ने बोला कि एक रिप्रेजेंटेशन, ये एक बहुत बड़ा एक रोल है, जो शायद एक इनिशिएटिव है जो शायद होना चाहिए, और हम सब जितनी भागीदारी दे सकें वो करनी चाहिए। थैंक यू सो मच आकाशदीप जी, वंस अगेन आपका आने के लिए और मेरे व्यूअर्स के साथ आज दिल खोलकर अपने दिल की बातचीत करने के लिए। आपको, आपके पूरे परिवार को और पूरी कम्युनिटी को हम सब की तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस। आप लोग, हम एक चाहते हैं कि एक ये सोसाइटी आप जैसे लोगों की सोच से आगे बढ़े और एक पूरी क्रांति लाए लोगों की सोच में, और एक ये इंटरव्यू बहुत बड़ा योगदान रोल प्ले करे, मेरा ये मानना है। Thank you so much for taking out time and sharing your heartful conversation, doing a conversation with your heart, from your heart, sorry.
Thank you, viewers. अब इससे ज़्यादा Thanks a lot. I am also emotional now. I cannot speak much. Thank you so much for watching, and do write what you learned. And in case if you really want to be connected with Akashdeep ji, I will share this information and everything. So आप जितना एम्पावरमेंट कर सकते हैं डिसेबल कम्युनिटी के लिए, ब्लाइंड लोगों के लिए, जो भी है, आप, मैं उनको ये वर्ड नहीं देना चाहता, बट हाँ, हम सबको मिलकर इसके लिए काम लेना है. एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ your most loved talk show, India Bounce Back, with another wonderful and eminent personality next week. Thank you. Stay safe, stay healthy, and I want to reinforce and reaffirm the statement: India will bounce back and no one can stop it. Thank you and have a great day. Bye-bye. Thank you, Akashdeep ji, once again.